मिला है इन डाइट से? Anybody? Has anybody got benefit long term from these fad diets? Fad diets means fashionable diets with fashionable names. I'm sure किसी को नहीं मिला है. In fact, you have lost a few things. What is the thing that you have lost? आप देखेंगे जब आप डाइट करते हैं आपका न्यूट्रिशन बॉडी में प्रॉपर नहीं जा रहा है, उससे आपको और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है. You lose your glow. Okay, the skin starts losing its vigor. तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपने डाइट किया है और आपकी क्रेविंग और बढ़ जाती है. तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम रसगुल्ले, वड़ा पाव, पेस्ट्री सब खा लें और उसके साथ वेट भी लूज करें. So Neelam ma'am is giving me a nice smile. So I'm sure many other people are also interested in such kind of a weight loss program. So now you'll have to give me a quick thumbs up as to how many of us are really interested in no diet but weight loss. And see the number of thumbs up going up and up. अभी मुझे अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो आई विल शेयर द स्क्रीन इफ आई हैव योर परमिशन टू गेट यू टू नो मोर अबाउट आवर अमेदा प्रोग्राम. So do I have your permission? Thank you so much, Neelam ma'am, to be the first one to give me your permission. So Ameda Shleshma Shuddhi Chikitsa. Okay, the correct approach to management, weight management, and related issues. Namaskar, I welcome you all to the Ameda webinar. My name is Rachna Bothra, and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of a program of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique way to manage your weight without the diet plans that restrict you and are not the correct way to stay in shape. Actually, weight loss is just one part of this program. It's much more than just weight management. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has a unique perspective about the human body and how it functions and can be corrected and balanced back to its natural state. Now let's come to the fact as to who is this webinar for. For people who are tired of temporary solutions and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their fat or weight issues. Weight management with Kumbhak the right way. Freedom from restrictive diet plans. What you learn in this webinar of today: what is fat? Why the body creates fat? An alarming question, a new way to look at weight management. What is Kumbhak? Why a need for Kumbhak? How Kumbhak works on the body. Let's hear from Swami Raj Vibhuji what exactly he has to say about weight. Thank you so much for listening to me patiently. I will now tell you how we are going to proceed in the webinar. Abhi aap sunenge recorded video of Swami Raj Vibhuji. After that, we will be having somebody live who has been a participant of Ameda and sharing his or her journey. Then we will be sharing the program details, the online therapy class details,
And lastly, we will have Swami Raj Vibhuji himself joining us live to answer all your questions. तो देर ना करें, लिख डालें your particular problems related to weight. For example, it could be insomnia, it could be fatty liver, it could be thyroid, and n number of problems which you are facing due to your weight, which is very, very problematic for you in your daily life. तो उसको लिख डालें along with your name and number. And I will be taking them up shortly. Yes, we will try to answer as many questions as possible in the limited time. Thank you so much once again. Over to Anilji to share the video. Weight loss. पहली बात तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. हाँ, वेट जो हम केवल कह देते हैं ना, केवल इसको बहुत वेट कह रहे हैं, नहीं नहीं, इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा जब हम बोलते हैं तो वेट लॉस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, केवल एक ही पार्ट है. अच्छा, मैं आपको एक बड़े सिंपल तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए. मेनी ऑफ यू वुड हैव मेड उपमा. उपमा बनाया होगा ना आपने? तो ऐसा कीजिए कि कढ़ाई में सूजी डालो, पानी डालो, ठीक है, और उसको मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो. नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कुछ मिस कर रहे हैं हम. क्या मिस कर रहे हैं? अरे आग तो जलाया नहीं हमने. क्या मिस कर रहे हैं? आग तो जलाया नहीं. और उसमें खूब सारी चीजें डालने की कोशिश. हेल्दी उपमा बनाएंगे, हाँ, खूब सारे वेजिटेबल डाल देंगे और पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, मगर आप आग नहीं जलाएंगे तो उपमा नहीं बनने वाला. टेक इट एज अ गारंटी, पक्का गारंटी ले लो, ठीक है. सो व्हाट आर वी मिसिंग? अपने शरीर में भी यही चीज मिस कर रहे हैं. जैसे बाहर होता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है. ये पार्ट ही मिस कर गए. और आपको मालूम है, उपमा अगर आप पहाड़ में ऊपर जाके बहुत प्रेशर कम हो जहां पे आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं, बड़ा तब भी मुश्किल है, आग जलाने के बाद भी नहीं बनेगा. तो दो चीजें जो हम मिस कर रहे हैं, 2 points that we are missing is pressure and temperature. और इसका ख्याल पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. वो मटेरियल तो के ऊपर तो रिसर्च करते हैं, केमिकल के ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर रिसर्च करते हैं, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि आपके शरीर में कुछ भी डाल दीजिए, जब तक बाकी दो फैक्टर जिसको आयुर्वेद में पित्त और वात कहते हैं, देखिए मटेरियल केवल जो होता है ना उसको श्लेष्म कहते हैं. आप मटेरियल डालते हैं, भोजन डालते हैं, दैट इज श्लेष्म. लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल करने की क्षमता अलग अलग है हर एक इंसान की, है कि नहीं? लेकिन हम हर एक को वही मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन डाल के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मगर आज तक कोई ठीक हुआ? बताइए. पिछले 100 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं. लेट्स टेक 100 years ऑफ एक्सपीरियंस. कौन सा इंसान है जो कि अपने डिजीज से बाहर आ गया कुछ डाल के? डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया. कौन सी बीमारी ठीक हो गई? कोई भी बीमारी ठीक नहीं हुई. इतना सारा विटामिन खाने के बाद में सारी जनता हेल्दी हो गई क्या? तो कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारी कम हो गई हमारी पॉपुलेशन में? कोई भी कम नहीं हुआ, सब बढ़ गया. अच्छा, यहां तक कि कैल्शियम खा रहे हैं खूब, लेकिन कैल्शियम की कमी होती जा रही है. एक इंसान बता दीजिए, टेल मी वन पर्सन इन द वर्ल्ड बाय टेकिंग इन कैल्शियम इसकी हड्डियां मजबूत हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया. गिव मी वन एग्जांपल. व्हाट आर वी मिसिंग? हाँ, पूरा का पूरा मेडिकल साइंस कुछ मिस कर गया जो कि हमारे पौराणिक ज्ञान परंपरा में था, लेकिन उसको हमने वैल्यू नहीं दिया. हम 3 में बात करते हैं, है ना? 3 में बात करते हैं ना.
वात पित्त कफ, हम तीन में बात करते हैं। हम कैसे बात करते हैं? ओजस तेजस वर्चस, हम तीन में बात करते हैं। हम बात करते हैं त्रिशूल, तीन तरीके के पेन, हम तीन में बात करते हैं। जब तक आप तीन में बात नहीं करेंगे आप पूरी बात नहीं कर पाएंगे। तो केवल मटेरियल को लेके अगर आप बात करेंगे कि भाई मल्टीविटामिन खा लो हेल्दी हो जाओ, तो आज तक तो कोई हेल्दी नहीं हुआ। मल्टीविटामिन खा के कैंसर के एपिसोड बढ़ गए, कैल्शियम खा के ब्रेस्ट कैंसर का चांस 200% बढ़ जाता है, मालूम है आपको? तो अच्छा प्रोटीन खाओ खूब, है ना, ये भी खा लो वो भी, लाल भी खा लो पीला भी खा लो हरा भी खा लो, लालच है बस। कोई ये देख नहीं रहा कि आपका वो जो खा रहे हैं वो सही में यूज होगा आपके शरीर में कि नहीं होगा। आदत ऐसी अगर हमने रख ली कि घर में सारा सामान ले आओ मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा और उसको कोने कोने में ठूस के रखा हुआ है, तो गंदगी बढ़ेगी बस। तो इस मानसिकता से भी निकलना पड़ेगा और ये ना सोचें कि आज तक जितना हुआ वो सही हुआ, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि जितना ज्ञान हमारे पास में आया उससे इंसानियत की हेल्थ बढ़ी। ऐसा एक भी प्रूफ नहीं आ रहा। हेल्थ खराब हो गई ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पहले गांवों में बीमारी होती थी, सभी गांव वालों को हो जाती थी, आजकल पूरी दुनिया को हो जाती है। जिस इन्फेक्शन के बारे में हम बात करते हैं वो भी ठीक नहीं होता, रेजिस्टेंस बढ़ गया, दवाइयां काम नहीं करती शरीर पे। आज एक भी इंसान दुनिया में ऐसा मिलना ढूंढने पे मिलेगा जो कि बिल्कुल उम्र भी हो गई और हेल्थ भी है, बहुत मुश्किल से मिलेगा, दिया लेके ढूंढना पड़ेगा दिन में। तो प्रूफ ही नहीं है कि हम लोग सही रास्ते पे, एक प्रूफ नहीं है। आपको मालूम है पिछले 100 साल में हमने 80%, 80% जीवन को पृथ्वी से एक्सटिंक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 80% of plants and animal species has gone extinct from the face of earth. एक जीवन बिल्कुल खत्म क्यों हो जाए? Why a life will get extinct? क्यों चला जाएगा? क्योंकि रिस्क बढ़ गया उसकी लाइफ पे, तभी जाएगा। हाँ या ना? Yes or no? If we increase the risk, then only a life will go off. तो एक अंदाजा के हिसाब से अगर आपको बताऊं, जस्ट फॉर as an example I'm taking it, not an accurate picture, but अंदाजा लगाते हैं कि what kind of risk we would have increased in the last 100 years. We have increased the risk by a proportion, by an amount of 8,000%. 8,000% रिस्क हमने बढ़ा दिया। Tell me one thing more. Have we increased the risk mitigating capacity of this body? क्या हमने रिस्क बढ़ाया तो रिस्क झेलने की क्षमता बढ़ाई अपनी? क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क, द कैपेसिटी ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क। एलोपैथी में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दे हैव अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। एलोपैथी केवल इम्यूनिटी की बात करता है और वो बहुत छोटा पक्ष है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिस्क मिटिगेटिंग कैपेसिटी इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में ये कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज नोन एज व्याधि क्षमत्वम और व्याधि क्षमत्व। क्षमत्व कहां से आया? वेयर हैज दिस क्षमत्व? क्षमत्व मीन्स क्षमता, कैपेसिटी। व्याधि मीन्स डिविएशन। So, to bear the deviation, that kind of capacity, किसी भी व्याधि को, परेशानी को झेलने की क्षमता। तो अगर हमने रिस्क बढ़ा दिया तो रिस्क को झेलने की क्षमता तो बढ़ाना चाहिए ना। इतने ज्ञानी होने के बाद भी हमने ये काम नहीं किया क्योंकि हम ज्ञानी थे ही नहीं। We were never intelligent. So,
आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से शुरू किया, सिंपल तरीके से आई टॉक अबाउट व्याधि क्षमत्व। तो व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप कुछ लेते हैं, द बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू यूटिलाइज इट, उसकी एक क्षमता होती है उसको इस्तेमाल करने की। अगर इफ द बॉडी यूजेस दैट मटीरियल और श्लेष्मा टू इंक्रीज लाइफ सस्टेनिंग एस्पेक्ट, जीवन को निर्वाह करने की चीजों को बढ़ाने में अगर शरीर को उसको इस्तेमाल करता है तो उसे शुद्धि कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव एक्यूरेट ट्रांसलेशन ऑफ थिंग्स, सो डोंट टेक थिंग्स एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। शुद्धि इज नॉट प्यूरिफिकेशन। तो तीन चीजें देखिए, तीन चीजें, अधि से शुरू, समाधि, you must have heard this word samadhi. The second word is shuddhi and the third word is vyadhi. ठीक है, सम अधि, शुभ अधि, शुभ अधि इज शुद्धि, और व्यधिअधि, व्यधिअधि इज व्याधि। शुद्धि का ऑपोजिट व्याधि होता है, व्याधि का ऑपोजिट शुद्धि होता है। राइट, सो संस्कृत, व्हेन यू से संस्कृत वर्ड्स, प्लीज डोंट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना तो उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी का सही तरीके से इस्तेमाल, इफ यू आर एबल टू यूज समथिंग टू सस्टेन लाइफ प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड एज शुद्धि, उसको शुद्धि कहा जाता है। सो व्हेन यू अप्लाई द राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड द राइट काइंड ऑफ प्रेशर, वाटर एंड रवा बिकम्स उपमा, दैट इज कॉल्ड एज शुद्धि। समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब सोल्यूशन मिलेगा। देखिए, ज्ञान तो आप बहुत सारा यूट्यूब और गूगल में देख लेंगे, मगर सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा ना। इंसान हेल्दी तो नहीं हो रहा ना, तो कितना भी ज्ञान कर लो, हेल्दी नहीं हुआ तो ज्ञान बेकार का। अगर उपमा नहीं बना तो वो ज्ञान बेकार का। राइट, सो व्हाट इज शुद्धि? शुद्धि, व्हेन यू यूज समथिंग फॉर इनहैंसिंग लाइफ, जीवन को बढ़ाने के लिए जब कोई चीज इस्तेमाल होती है तब उसे शुद्धि कहते हैं। नहीं तो जीवन को कम करने के लिए होता है, डिविएशन होता है, तो उसे व्याधि कहते हैं, डिजीज कहते हैं। तो डिजीज कैसे होगा? डिजीज कैसे होगा? जब आपकी कैपेसिटी नहीं होगी यूटिलाइज करने की। इफ योर कैपेसिटी टू यूटिलाइज मटीरियल इज नॉट देयर, देन यू आर इन अ डिजीज। हाँ, सिंपल। आगे चलते हैं। देन हु शुड बी एबल टू यूटिलाइज थिंग्स प्रॉपरली इन द बॉडी? एवरीबॉडी ना, हर एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो और कौन कौन को चाहिए? सपोज यू हैव गॉट इनटू अ डिजीज एपिसोड, आपको बड़ा गहरा इंफेक्शन लगा और आप रिकवर कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा चाहिए नहीं है श्लेष्म शुद्धि, राइट? सो यू हैव गॉन थ्रू एन ऑपरेशन, सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ या इंजरी हुआ, तो आपको श्लेष्म शुद्धि चाहिए, व्याधि क्षमत्व चाहिए। रिहैबिलिटेशन के लिए आपको व्याधि क्षमत्व चाहिए, ये प्रोग्राम चाहिए। रिहैबिलिटेशन करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम चाहिए। और डी एडिक्शन करना चाहते हैं, यू वांट टू कम आउट ऑफ सम काइंड ऑफ एडिक्शन, यू नीड व्याधि क्षमत्व और श्लेष्म शुद्धि, उस समय भी आपको चाहिए। डिटॉक्स करना चाहते हैं अपनी बॉडी का, बॉडी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? श्लेष्म शुद्धि और व्याधि क्षमत्व। तो स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम इज बिग, इट्स अ बिगर अम्ब्रेला, एंड वेट मैनेजमेंट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। वेट मैनेजमेंट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, और दूसरी चीज इसके बाद में और थोड़ी सी बात करते हैं, देन विल टॉक अबाउट हाउ वी गो अबाउट डूइंग इट, इसको हम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। If we are saying we have increased the risk of this human body or any kind of life, लाइफ पे हमने रिस्क बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? What does it mean? Right?
So naturally there is a balance of many things, with material, pressure, temperature, which creates life, है ना. वातावरण में भी टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन है एक तरीके से, तो एक तरीके की लाइफ हो रही है वहां पे, ऐसा है ना. इफ वी डिविएट दिस बैलेंस, अगर इस बैलेंस को थोड़ा बहुत डिविएट करते हैं हम, देन वी क्रिएट रिस्क. सो हैव वी पोल्यूटेड द एनवायरमेंट? क्या एनवायरमेंट पोल्यूट कर दिया हमने? सो वी हैव क्रिएटेड रिस्क ऑन अस, अपने ऊपर रिस्क कर दिया, क्रिएट किया कि नहीं? सो वी हैव चेंज द कंपोजिशन, द रिसोर्सेस ऑफ दिस एनवायरमेंट. इसमें से पानी आप देखो आसपास में, जस्ट लुक अराउंड, हाउ मेनी प्लेसेस वेयर यू फाइंड पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक, ताल, तालाब, सरोवर कहां गए हमारे? नहीं है. जमीन के नीचे पानी कहां है? फ्रॉम 50 फीट टू 5000 फीट डाउन, दूर चला गया पानी, है ना. जो जिस तरीके के जीव जंतु होने चाहिए हमारे आसपास में वो नहीं है. हमारे शरीर को हवा लगनी चाहिए, नहीं, हमने बंद कर दिया उसको, कंडीशनड एनवायरमेंट में रहते हैं. सो वी हैव क्रिएटेड रिस्क बाय चेंजिंग द एनवायरमेंट और कंडीशनिंग, क्रिएटिंग कंडीशंस इन द एनवायरमेंट. एक रिस्क, पहला रिस्क हमने ये किया. द सेकेंड रिस्क इन द बॉडी, शरीर के अंदर रिस्क किया. सो योर बॉडी इज डिजाइंड फॉर यूटिलाइजिंग नेचुरल फूड. भोजन को इस्तेमाल करने के लिए आपका शरीर बना हुआ है. ऑल द केमिकल कंपोजिशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो कुछ भी हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, है ना, एंड और जितने फंक्शन होते हैं इसके, जितने भी केमिकल कंपोजिशन है, वो सब किस चीज के लिए? फूड को यूटिलाइज करने, टू यूटिलाइज फूड, इजंट इट? भोजन को इस्तेमाल करने के लिए है कि नहीं है? सपोज कीजिए आप इसके अंदर भोजन के अलावा कुछ और डाल देते हैं, यू पुट समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम फूड, विल यू क्रिएट रिस्क? क्या आप रिस्क बढ़ा देंगे? आप एक दवाई खा लेते हो, केमिकल दवाई, तो क्या आप रिस्क बढ़ाएंगे कि नहीं इस शरीर के अंदर? द मोमेंट यू पुट समथिंग विच इज नॉट योर फूड, जब भी कोई चीज आप इस शरीर में डालते हैं जो भोजन नहीं है, आप गड़बड़ करते हैं ना, आप ये रिस्क बढ़ा देते हैं. ठीक है. तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और वो वेट के साथ में रिलेटेड हुए एग्जांपल देंगे. है ना, विल यूज एडिपोस और फैट एज एन एग्जांपल. सो फैट also takes care of what you also call as cholesterol. कोलेस्ट्रॉल जिसे हम जानते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीजें जो डालते हैं. डू यू नो कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे बढ़िया चीज है. अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि योर ब्रेन, योर बॉडी एंड ब्रेन, स्पेशली योर ब्रेन डजंट ट्रस्ट यू, ये आपको भरोसा नहीं करता, और ये अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है. अच्छा, 90% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज मेड बाय योर बॉडी. कोलेस्ट्रॉल बाहर से आप देंगे ना तो शरीर नहीं लेगा, वो अपना बनाएगा. तो बाहर से आप जो उसको कह रहे हैं फैट दे रहे हो, वो उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा बनाता है. और ब्रेन इज मेजरली कोलेस्ट्रॉल. अच्छा, रिस्क आपके शरीर में जब भी बॉडी को कम करना होगा तो वो एक हार्मोन बनाएगा, उसका नाम है कॉर्टिसोल. और वो कहां से बनाएगा? व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्टिसोल? इट इज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड. सो जब भी रिस्क बढ़ाएंगे आप, तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल ज्यादा बनाएगा. यस और नो? योर बॉडी इज ए लिविंग एंटिटी. जब भी आप शरीर का रिस्क बनाएंगे तो वो रिस्क को कम करने के लिए कॉर्टिसोल बनाएगा. तो क्या बढ़ाएगा वो अपने शरीर में? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा. तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना गलत है या अच्छा है? अच्छा है. गलत कैसे हो सकता है? अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे तो आप शरीर को रिस्क ठीक नहीं करने देंगे, रिस्क को मिटिगेट नहीं करने देंगे. दैट इज क्रिमिनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you reduce the risk, the body will not make cholesterol. Yes or no? But if you increase the risk and do not allow the body to increase cholesterol, you are doing a crime upon your body. आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो. नाउ
गिविंग मोर एग्जाम्पल अराउंड इट, थोड़ा और एग्जाम्पल दूं कि हम कैसे एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी को लेके. सो हाउ डज योर बॉडी मिटिगेट इन्फेक्शन? इन्फेक्शन को कैसे ठीक करता है आपका शरीर? मेनी ऑफ यू माइट हैव गॉट इनटू कोरोना, यस और नो, और वायरल, सम काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन यू मस्ट हैव गॉट इनटू, है ना? वायरल इन्फेक्शन तो हुआ होगा सबको. What is the first thing that happens in your body? What is the first thing that happens in your body? Fever, temperature rise, yes or no? Fever होता है ना? So किसी भी इंफेक्शन को खत्म करने का तरीका क्या है बॉडी का? What is the way of this human body to mitigate infection? Temperature, rise of temperature, temperature बढ़ाना. मगर आप नहीं बढ़ने देते ना. आप क्या करते हैं? You take in a डोलो, क्रोसिन, पैरासिटामोल. आप बढ़ने नहीं देंगे. आप इसको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं है. यू डोंट टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शन, वी विल टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शन. आप नहीं बढ़ने देते ना. दिस इज, देखिए हम क्रिमिनल काम कैसे कैसे कर रहे हैं. हाउ वी आर डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी अमंग दिस बॉडी, राइट? सो नाउ सेकेंड थिंग, उल्टी होता है तो फिर उल्टी बंद कर देंगे, है ना? दस्त होगा तो दस्त बंद कर देंगे. कोई भी काम इस शरीर को नहीं करने देंगे. सो हाउ विल दिस बॉडी मिटिगेट द रिस्क? उस रिस्क को कम कैसे करेगा जब आप इसे करने नहीं देंगे? तो व्हाट विल इट डू? ये क्या करेगा? जो आप नहीं कर सकते उस तरफ में अपना रिस्क मिटिगेट करेगा. इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ फैट, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इंक्रीज ऑफ एडिपोज टिश्यू. वो अपना भोजन कलेक्ट करने लग जाता है कि बे जरूरत पड़ गई तो. ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए. आप लोगों ने, यू मस्ट हैव थॉट ऑफ दिस इन अ डिफरेंट टर्म. मैं आपको बिल्कुल अलग रास्ता दिखा रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कहां जा रहे हैं. सो प्लीज होल्ड फॉर सम टाइम. आई विल टेल यू आप क्या कर रहे हैं इसके साथ में और क्यों वेट बढ़ रहा है और ऐसे कैसे आसानी से कम हो जाएगा. हाउ विल यू रिड्यूस इट, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत तरीके से कैसे हो जाएगा. एंड अ लिटिल बिट अबाउट द प्रोग्राम ऑल्सो. So when you do not allow this body to do something, the risk of this body increases. Yes or no? अगर आप शरीर को कोई काम नहीं करने देना चाहेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा ना. इसका रिस्क बढ़ जाएगा. Then what will it do? It will go into a survival mode. ये सर्वाइवल मोड में अपने को जिंदा रखने की कोशिश में और आगे जाएगा. सो वो सर्वाइवल के लिए, व्हाट इज द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी? सो देयर इज अ कोर. एक दो चीजें हैं आपके शरीर के अंदर. सर्वाइवल का जो काम करता है ना, वो काम करता है, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है ना, एड्रीनल ग्लैंड. आपके किडनी के ऊपर दो छोटे ग्लैंड है, ये सर्वाइवल का काम करते हैं. ये क्या रिलीज करते हैं? ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं. ठीक है, ये स्टीरॉइड्स निकालते हैं. अब देखो, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ताकि पता चले कि वाई वी आर नॉट एबल टू मैनेज डिजीज. हम डिजीज कोई भी तरीके का क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे. तो देयर इज अ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस. आपका पीछे का मगज है ना, छोटा छोटा पीछे हाइंड ब्रेन, छोटा ब्रेन है, और जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर का हिस्सा, वहां पे हाइपोथैलेमस एक जगह होती है. ये ना आपके पूरे शरीर को का सीईओ है, एक तरीके से मैनेजर है, हेड है. यही बताता है कि क्या करना चाहिए शरीर में, क्या नहीं करना चाहिए, यह बताता है. तो जब आप रिस्क बढ़ा देते हैं अपने शरीर का तो एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है. इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी. एड्रिनल ओवर एक्टिविटी शुरू होता है आपके शरीर में. ठीक है, अब ये एड्रिनल ओवर एक्टिविटी कई तरीके से होता है. जैसे कि आपने दर्द के लिए दवाई खाई होगी ना, तो वो दवाई दो तरीके की होती है. एक को कहते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और दूसरे को कहते हैं स्टीरॉइड्स. ये दो तरीके की चीजें आपको खिलाई जाती है. जब भी कोई चीज हाथ से बाहर हो जाता है,
आपको दर्द की दवाई सबने खाया होगा ना, दे आर उनको प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कहते हैं। और दूसरा स्टेरॉइड, जब हाथ से काम निकल जाता है तो आजकल हर चीज में स्टेरॉइड दिया जाता है। ठीक है, ये दो चीजें जब भी आप बाहर से देंगे तो आपका एड्रिनल एक्टिविटी गड़बड़ होता है, यानी रिस्क झेलने की क्षमता शरीर की खराब हो जाती है। पहली बात क्या बताया आपको, पहली बात क्या बताया आपको कि जब आप छेड़छाड़ करेंगे शरीर के बैलेंस के साथ में, कोई केमिकल डालेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, कभी रोकेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या बताया, जो रिस्क को ठीक करने का मैकेनिज्म है शरीर का, उसको भी काम नहीं करने देते, उसकी क्षमता भी ठीक नहीं है। तो क्या होगा, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी। अब ये चीज आप हर जगह पे देख सकते हो कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहा है। यानी इन्फेक्शन वाली बात हम साइड में रखते हैं, अब क्या बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है। अब क्या बढ़ रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, थायराइड इज इंक्रीजिंग, कैंसर बढ़ रहा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो हमने इसी को कहते हैं कि अगर रिस्क बढ़ाया और रिस्क झेलने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई तो सारी दुनिया बीमार पड़ेगी। और आप देख लीजिए, केवल टाइम की बात है, आज कोई बीमार नहीं है तो कल को होने ही वाले हैं। तो आपने एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ा दिया, इंटरनल रिस्क बढ़ा दिया बॉडी का, ये दोनों बढ़ा दिया। अब इसको काम नहीं करने दे रहे तो आप केवल वेट कीजिए, आपको मल्टीपल डिजीज होने वाला। ठीक है, आप केवल वेट करना और कुछ नहीं करना। अभी देखेंगे ये एक डिजीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से आगे चलेगा ना। बॉडी एक और काम कर रहा है रिस्क को मिटिगेट करने का, कि वो सोच रहा है बाकी तो ये काम करने नहीं दे रहे, तो क्यों ना अपना भोजन मटेरियल तो इकट्ठा कर लो ताकि कभी काम करने दे तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। वही फैट है आपके शरीर, वही फैटी लिवर के बारे में एक और बात बता देता हूं कि व्हेन यू पुट इन अ केमिकल इन योर बॉडी इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन। केमिकल ही अपने आप में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। यानी कि अगर आप स्किन पे थोड़ा सा केमिकल डाल दो तो जलन होगी ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो आपके लिवर में जब ये जाता है तो उसको भी इन्फ्लेमेशन होता है। थोड़ा फैट लगा दीजिए, पुट अ लिटिल फैट, लिटिल घी, इन्फ्लेमेशन विल गो डाउन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। तो लिवर भी तो बेचारा फैट इकट्ठा करके इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, आप वो भी नहीं करने देंगे। यू विल टेक सम काइंड ऑफ अ स्टैटिन। तो प्लीज देखिए, मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं द काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग अपॉन दिस बॉडी। और ये बॉडी फिर केवल अपने को बचाने के लिए फैट एक्यूमुलेशन, एडिपोज, इंक्रीज ऑफ एडिपोसाइट्स, इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, केवल यही कर पा रहा है। ठीक है, अब उसको दूसरा ट्विस्ट देते हैं। थोड़ा सा बताया मैंने, ये बहुत डायर, बहुत खराब सिचुएशन है, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये आप समझें कि वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट वन और टू थिंग्स, वी आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर करंट अप्रोच टू हेल्थ एंड डिजीज। जो अभी हमारा हेल्थ और डिजीज के लिए अप्रोच है ना, उसमें बहुत सारे मिसिंग पार्ट्स हैं और ये सारी दुनिया बीमार हो जाएगी अगर आज हमने अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदला तो। सो लेट्स गेट बैक टू वेयर आई स्टार्टेड विथ। मैंने शुरुआत कहां से किया था, श्लेष्म शुद्धि, appropriate use of whatever you put in your body and appropriate use of whatever is there in the body as a stock, as a reserve। हाँ, इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक करें। अच्छा, इसके पहले एक और चीज मैं बता दूं, should I tell you one more thing? How do you mitigate the risk? अपने शरीर पे कोई रिस्क अगर आपको आता है तो हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क, कैसे आप उस रिस्क से बचाते हैं अपने आप को। जरा एक्सपेरिमेंट करें, करके देखें। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं। टेल समबडी टू हिट यू हार्ड, किसी को बोलिए कि आपको थोड़ा जोर से मारे, मुक्का मारे, तो आपको वो मुक्का जो है, वो जो हिट लगेगा आपको, दैट इज अ रिस्क, वो रिस्क है ना। सो हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इट, उससे बचने के लिए आप करते क्या? क्या आप अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं? डू यू टेंस योर बॉडी टू मिटिगेट द रिस्क? क्या आप टाइट कर लेते हैं उससे बचने के लिए?
और टाइट करने के लिए आप क्या करना, व्हाट डू यू डू टू टेंस योर बॉडी? यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, यस और नो? आप सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने शरीर को, ताकि आपको वो जो चोट है वो कम लगे, हाँ या ना? तो हाउ डू यू मिटिगेट द एक्सटर्नल रिस्क? बाय होल्डिंग द ब्रेथ. एक और एग्जांपल लें, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सो यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, आप एक बहुत डरावनी सी मूवी देख रहे हैं, एंड सडनली अ वेरी हॉरर सीन इज अबाउट टू कम. एक ना बहुत खतरनाक सीन आने वाला है, आपको पता, अंदाजा लग जाता है. व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? आपकी सांस रुकती है, आप सांस रोक लेते हैं और देखते नहीं वहां पे, ऐसे आंख के आगे हाथ रख के सांस रोक लेते हैं, यस और नो? यस और नो? अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं. आई कीप ऑन गिविंग यू एग्जांपल्स, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट. आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, ये ना सोचें कि जो कहीं जाके जिसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो समझदार. नहीं, पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते. दिस इज अ रिसर्च ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. 25 साल की एजुकेशन में 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है. तो आप लोग ज्यादा समझदार हैं, ठीक है ना? तो और एग्जांपल लेते हैं. यू मस्ट हैव टेकन सम इंजेक्शन. इंजेक्शन लिया होगा कभी ना कभी, इंजेक्शन लगा ना आपको, और आप देख रहे हैं और वो डॉक्टर इंजेक्शन देने वाला है और फिर वो मतलब सुई अंदर जाने वाली है, उस समय क्या होता है? व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस? सांस रोक लेते हैं. ये आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मगर आप देखेंगे कि आप सांस रोक लेते हैं. यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? यू होल्ड योर ब्रेथ, है ना? घबरा गए, बहुत घबरा जाते हैं कभी, हाँ, एंजाइटी हैपेंस. डू यू नो योर ब्रेथ गेट्स हेल्ड, सांस रुकती है. बहुत खतरनाक न्यूज सुना आपने, कहीं से बहुत खराब समाचार आ गया, आपकी सांस रुकने लग जाती है. आप रोते हैं जब, उस समय आपका गला भर जाता है, आपकी सांस रुकने लग जाती है. इतने सारे इंसिडेंट्स, रिस्क मिटिगेटिंग इंसिडेंट्स आपने देखे अपने लाइफ में, यू हैव सीन इन लाइफ. हाउ डू यू मिटिगेट दैट रिस्क? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ एवरी टाइम इट हैपेंस, यस और नो? अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, एक व्हीकल में अगर ट्रैवल कर रहे हैं खड़े होकर बस में, और आपने एक रॉड पकड़ रखा है, खंबा पकड़ के रखा है, और वो ऊबड़ खाबड़ जगह से जाती है, तो आपका होल्ड टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता? होल्ड टाइट होता है कि नहीं होता? पकड़ लेते हैं ना, जोर से पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? अगर आप एक टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं, पीछे यू आर सिटिंग एट द बैक एंड देयर इज अ लिटिल हेयर इन देयर, यू होल्ड द पर्सन टाइट और नॉट? अब टाइट पकड़ लेते हैं ना. एक्चुअली आप देखेंगे तो टाइट पकड़ने के लिए आप सांस रोक लेते हैं, ठीक है ना? यू होल्ड योर सेल्फ टाइट. तो एक तरीका ये जानने के लिए कि आपका व्याधि क्षमत्व, रिस्क को झेलने की कैपेसिटी कितनी है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं. वन वे टू नो कि आपके शरीर में फैट यूज होगा कि नहीं होगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. if there is excessive fat in your body or not, what will it, how will you check कि आपका वे अपना फैट को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी कम है कि ज्यादा है? आप अपनी पकड़ को देखें. इफ यू आर एबल टू टेंस योर बॉडी अ लॉट, अगर अपने शरीर को टाइट कर सकते हैं, अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आपका झेलने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है. द स्ट्रेंथ ऑफ होल्ड ऑन योर बॉडी is an indicator of your immunity, is an indicator of a larger scope. I am saying व्याधि क्षमत्व. ये अगर आप बढ़ाते हैं, if you increase व्याधि क्षमत्व, you will do श्लेष्म शुद्धि, you will increase immunity, you will increase the fundamental strength of your body, you will increase the organ function of your body and the organ strength of your body, you will increase the homeostasis of your body.
अब एक नया वर्ड बोल दिया, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, बिकॉज ऑफ होम्योस्टैसिस देयर इज एवरीथिंग इन बैलेंस इन योर बॉडी। तीन चीजों को होम्योस्टैसिस चाहिए आपके बॉडी के अंदर, तीन चीजों का बैलेंस चाहिए, ठीक है? केमिकल होम्योस्टैसिस, ऑस्मोटिक होम्योस्टैसिस एंड थर्मो होम्योस्टैसिस। तीन चीज बताया। देखिए देखिए, ये अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ डिफरेंट मैनर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मटीरियल। कफ, पित्त, वात, ओजस, तेजस, वर्चस, यही बताया मैंने। तो ये तीनों का ही बैलेंस आपको लाना पड़ेगा, तभी व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा। यही तीन चीजों का होम्योस्टैसिस बैलेंस लाएंगे, तभी आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, तभी आपका फैट का रिडक्शन भी होगा, डिजीज का रिकवरी भी होगा, स्ट्रेंथ गेन भी होगा, एंटी एजिंग भी होगी, एंटी एजिंग भी होगी। नाउ आई हैव जस्ट टोल्ड यू वन वे टू चेक, देयर आर अदर वेज टू चेक। आई हैव टोल्ड यू ओनली वन वे। पकड़ मैंने बोला ना, केवल एक ही तरीका है पकड़। मेंटली किसी को इश्यू भी होगा तो भी उसकी पकड़ ज्यादा होती है, समझिए। आप एक ही चीज पे निर्भर ना करें। आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट वन थिंग, इफ देर इज अ मेंटल इश्यू पेशेंट, अगर उसकी पकड़ ज्यादा हो तो दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ व्याधि क्षमता। तो ये बैलेंस आपको करके चलना पड़ेगा। अच्छा, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज? एक तरीका मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता जा रहा हूं कि एक्सटर्नली यू सी, यू होल्ड योर ब्रेथ टू मिटिगेट रिस्क। आप किसी भी तरीके का एक्सटर्नल रिस्क मिटिगेट करते हैं तो आपकी ब्रेथ होल्ड करते हैं। यानी अगर इफ यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, you will see, you will mitigate risk very easily, and the fat proportion, आपके शरीर में फैट की जो क्वांटिटी है वो यूज होने लग, उसकी शुद्धिकरण होने लग जाएगा, यूज होने लग जाएगा। अनदर एग्जांपल, इसी को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इफ यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से एग्जांपल 15 मिनट्स, 15 मिनट तक आपने बीच बीच में सांस को रोकते 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 ऐसे किया, देन व्हाट विल यू सी, इमीडिएटली व्हाट विल सी, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। आपको पसीना आ जाएगा विदाउट डूइंग एक्सरसाइज। सो एज आई सेड, थर्मो रेगुलेशन और टेम्परेचर बॉडी का आपको बढ़ाना पड़ेगा टू यूटिलाइज फैट। यस और नो? उसके लिए आप एक एक्सरसाइज करते हैं ना, खूब जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं तो फिर थोड़ा फैट कम होता है, मगर मैं तो आपको बैठ के ही फैट यूटिलाइज करने का तरीका बता रहा हूं, विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज। By just doing Kumbhak, you increase the thermoregulation factor और thermoregulative index of your body। शरीर में टेम्परेचर बढ़ाने की क्षमता आपकी जैसे ही बढ़ती है, आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। Anybody who does Kumbhak for a certain period of time till the व्याधि क्षमत्व has increased cannot gain weight, can never gain weight। I was more than 107 kgs, मैं 107 किलो से भी ज्यादा था। तो पहली चीज, इफ योर बॉडी टेम्परेचर, इफ योर टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी इज हाई, यू कैन नॉट हैव एक्सेसिव फैट इन योर बॉडी, इट विल गेट यूटिलाइज्ड, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको कुंभक कैपेसिटी बढ़ाने से थर्मो रेगुलेशन भी होता है। सेकेंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस, you know, for transportation of fat or any material in the body, there is a certain osmotic pressure which is needed। आजकल उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। there is nothing called as blood pressure। ब्लड प्रेशर जैसी चीज कुछ भी नहीं होती, और किसी को भी मालूम नहीं है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, नहीं तो वो ठीक कर देते, पर हम लोग ठीक कर देते हैं ब्लड प्रेशर। हाउ? बाय कुंभक। अपने शरीर के अंदर आप प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल। उल्टी किया होगा सबने, यू मस्ट हैव प्यूक्ड। उल्टी किया होगा सबने, कभी ना कभी तो किया होगा। उल्टी करने से पहले क्या होता है? व्हाट हैपेंस? फॉर थ्रोइंग आउट यू नीड अ सर्टेन प्रेशर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेशर चाहिए, एंड बॉडी होल्ड्स ब्रेथ, सांस रुकती है वो प्रेशर बनाने के लिए, एंड देन यू प्यूक आउट, फिर उल्टी होती है आपके। छींक मारी है किसी ने? हैव यू स्नीज? छींक मारा है?
क्या छींक मारने से पहले सांस रुकती है? डू यू होल्ड योर ब्रेथ बिफोर? देखिए, ऑब्जर्व ही नहीं किया आपने। इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि किसी किताब को पढ़ के आपको ज्ञान मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। अरे नहीं, ज्ञान तो यहां पे है। लाइफ इज हैपनिंग हियर, यू मस्ट ऑब्जर्व इट एंड देन ओनली यू विल गेट अ सोल्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन हो गया एंड यू वांट अ रिलीफ, है ना? थ्रो बाहर नहीं निकल रहा तो जोर लगाते हैं कि नहीं सांस रोक के? सबने किया होगा कि नहीं किया होगा? वो भी सांस रोक के करते हैं। दैट मीन्स इफ देर इज समथिंग टू ट्रैवल इनसाइड योर बॉडी, अगर शरीर में कोई चीज ट्रैवल करना है तो आपको एक प्रेशर चाहिए। प्रेशर कम हो जाए ना किसी का, आस्क अ पर्सन हु हैज लो बीपी, वो किसी को पकड़ भी नहीं पाएगा, उसकी पकड़ ही कमजोर हो जाएगी। तो बॉडी में कोई चीज फ्लो कराने के लिए भी प्रेशर चाहिए, और प्रेशर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ब्रेथ होल्ड। अंदर बॉडी का प्रेशर बनाए तो ब्रेथ होल्ड करके प्रेशर बना सकते हैं ना? हाँ या ना? और कोई तरीका है क्या? कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। तो जब हम श्लेष्म शुद्धि कर रहे हैं तो हाउ डू वी डू श्लेष्म शुद्धि? बाय पित्त एंड वात बैलेंस, और ओजस वर्धन कह सकते हैं। श्लेष्म शुद्धि को हम क्या कर सकते हैं? ओजस वर्धन। ओजस वर्धन क्या करें? आपको लगता है कुछ खा लो तो ओजस वर्धन हो जाएगा? खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, और आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि लगने के लिए आपका पित्त और वात पक्ष सही होना चाहिए, तेजस और वर्चस सही होना चाहिए, तब जाके ओजस बनेगा, है ना? आग जलनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, तब उपमा बनेगा। वापस से घूम फिर के वहीं आ जाइए, आपको समझ में आएगा। तो अपने शरीर का श्लेष्म शुद्धि के लिए क्या करेंगे? यू विल हैव टू रेगुलेट और इंक्रीज द टेम्परेचर इंडेक्स एंड प्रेशर इंडेक्स ऑफ योर बॉडी। आपके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज, यानी झेलने की क्षमता, कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए, एंड देन श्लेष्म शुद्धि कैन हैपन, नॉट अदरवाइज। कोई और तरीका नहीं है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट you will see your immunity will increase. Because of that, your organ strength will increase. Because of that, you will be able to recover from disease very fast. Rehabilitation will happen. Anti-aging will happen. Fat तो इस्तेमाल होगा तभी होगा ना ये सब. So Shleshma Shuddhi, how we are going about doing Shleshma Shuddhi? By using Kumbhak to increase what is called as Tejas and Varchas. दो फैक्टर बताए. श्लेष्म या ओजस को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ा रहे? बाय इंक्रीजिंग द तेजस एंड वर्चस फैक्टर. वी आर इंक्रीजिंग द ओजस फैक्टर एंड यू विल सी जो भी कुंभक कर रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार. इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? त्रिकाग्नि संस्कार. सो वी आर टीचिंग यू त्रिकाग्नि कुंभक क्रिया एज वन पार्ट ऑफ इट. तीन चीजें आपको सिखाएंगे इसमें प्रोग्राम में. The first thing that will teach you is Trikagni Kumbhak Kriya. The second part that will teach you is Sarvanga Hatha Kumbhak, which is directed towards every organ of your body. तो ये ना, ये overall health program है. So it will increase the capacity of your liver, thereby reducing fatty liver, liver cirrhosis, liver के issues को खत्म करेगा, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा. इट विल बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, बूस्ट अप कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट अप हार्ट स्ट्रेंथ, इंक्रीज व्हाट यू कॉल एज द ब्लड रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन फैक्टर ऑफ योर बॉडी. आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के फैक्टर को बढ़ाएगा. इट विल एनहांस द किडनी कैपेसिटी, किडनी की कैपेसिटी को वो इंक्रीज करेगा. तभी जो खराब चीजें हैं आपके शरीर से बाहर जाती है, श्लेष्म शुद्धि में जो भी खराब चीजें बनेगी वो थ्रो आउट करने का भी digestion capacity. It will increase the hunger index, the right hunger index of your body. सही भूख, अगर आपको खूब भूख लगती है ना, आपको फैट नहीं हो सकता. मालूम है इस बात का? आपके अंदर फैट नहीं हो सकता, खूब भूख लगती है, लेकिन आप भूख लगने ही नहीं देते, वैसे ही खा लेते हैं. टाइम पे खाते हो ना तो बीमारी हो रही है, भूख लगने पे खाएंगे तो बीमारी नहीं होगी. सो हंगर फैक्टर को भी इंक्रीज करेगा, देयर बाय
डाइजेस्टिव प्रोसेस जो डाइजेस्टिंग एनीथिंग विच इज केप्ट एज डॉर्मेंट इन योर बॉडी। कोई फैट अगर डॉर्मेंट है तो उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपके, ठीक है ना। तो ऑर्गन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सर्वांग हठ कुंभक है। एंड द थर्ड थिंग इज इट विल ऑल्सो इंश्योर दैट यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन योर बॉडी। जैसे आपका ऑपरेशन हुआ, जैसे आपको न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज है, स्पेशली न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिजीज, सो एंड देयर इज एन एपिसोड, एक रिस्क एपिसोड आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वापस आके आप अपने शरीर को वापस से एफिशिएंट एंड स्ट्रांग कर पाए, उसके लिए करला कटाई का एक बहुत सिंपल प्रोसेस, एनीबडी कैन डू इट। करला कटाई इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस। ये बहुत एक साउथ इंडियन मार्शल आर्ट में अभी भी संभाल के रखा है इसको, नॉट इन द राइट फॉर्म, नॉट इन द ओरिजिनल फॉर्म, बट यस इन मेजरली इट हैज बीन केप्ट एज इट इज। तो करला कटाई एक ऐसी चीज है जिससे कि बॉडी का ब्यूटिफिकेशन होता है। योर फैट विल बी यूटिलाइज बट योर प्रोपोर्शन विल कम आउट। आपका प्रोपोर्शन बहुत अच्छा बन जाएगा, यानी आप शरीर से खूब सारा एक्टिविटी काम ले सकते हो। जैसे जवानी में खूब शरीर से काम ले सकते थे ना, अगेन यू कैन यूज योर बॉडी टू डू लॉट ऑफ एग्रेसिव एक्टिविटी। आपका बॉडी का प्रोपोर्शन भी आता है करला कटाई से। एंड देयर इज अ मूवमेंट विद सर्टेन वेट के साथ में एक छोटा सा मूवमेंट आपको सिखाएंगे। वेरी शॉर्ट प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है। इफ यू डू इट रेगुलरली इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंटी एजिंग फैक्टर। एंटी एजिंग भी होता है इससे, ठीक है। 3 चीजें आपको सिखा रहे हैं, बट एवरीथिंग हैज अ बेसिस कोर एज कुंभक। ये तीनों चीजें, त्रिकाग्नि संस्कार, सर्वांग हठ कुंभक, करला कटाई, तीनों में ही कुंभक बेस है। कुंभक के बगैर हम नहीं कर रहे ये सब, क्योंकि कुंभक के बगैर ये हो नहीं सकता। बाकी जगह करला कटाई को किया जा रहा है नॉट विथ कुंभक। करला कटाई में वेट को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू डू कुंभक, बट विल यूज प्योरली कुंभक टू डू करला कटाई। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, है ना। तो दुनिया में अपने तरीके के यूनिक प्रोसेस, बिल्कुल इकलौते प्रोसेस, और कोई ऐसा नहीं है। विल टीच यू इन 40 डेज, 40 दिन के अंदर आपको ये चीजें हम सिखाएंगे। इफ यू डू प्रैक्टिस इट सो यू विल रीप बेनिफिट, लाइक वेट रिडक्शन तो होगा। इफ यू आर डूइंग कुंभक, लेट मी अगेन गारंटी दिस, इफ यू आर डूइंग कुंभक and your Vyadik Kshamatva has increased, which takes approximately 3 to 6 months from people to people. ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को, ज्यादा क्रॉनिक डिजीज है, then it will take 1 year to 3 year. बट सोचिए, आप अगर 3 साल के अंदर अपने सिचुएशन, द स्टेट ऑफ योर बॉडी बिकम सच कि आपकी बीमारियां सारी ठीक हो जाती हैं और आगे चल के कोई बीमारी नहीं आए आपके, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इज देयर एनी other way through which you can do this? No, you can't do this through any other way. अच्छा भोजन खाना तो ठीक है, but food will not increase your व्याधिक क्षमत्व। तो आपको क्या वो च्यवनप्राश खा के आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी? नहीं साहब, ऐसा काम नहीं करता, ऐसी चीजें नहीं होती। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा इफ यू हैव स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इन अ लॉन्ग टर्म, साल भर च्यवनप्राश खाएंगे तो थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन व्याधिक क्षमत्व बढ़ाएंगे तो 1 हफ्ते में आपकी इम्यूनिटी डबल हो सकती है। सो दिस इज अ मिसिंग पार्ट दैट वी मस्ट फोकस अपॉन, एंड दिस प्रोग्राम इज अ कंप्लीट रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रिजुवनेशन प्रोग्राम, है ना। तो ये बड़ा स्कोप है इसका, रिहैबिलिटेशन, रिकवरी, रिजुवनेशन। किसी को अगर मेंटल एपिसोड भी है, any kind of mental issues, stress, depression, bipolarity, schizophrenia, those kind of things, अगर ADHD इस तरह की चीजें भी हैं, so you'll see that the moment we increase the Vyadik Kshamatva, the mental issues actually collapse down, वो चीजें एकदम ठीक हो जाती हैं। So the core thing is Vyadik Kshamatva बढ़ा के what we are doing श्लेष्म में शुद्धि कर रहे हैं, and that is how we will achieve all those results that I have said. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अमेदा, और इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला? हमने कहा अमेदा, ताकि आप प्रोनाउंस कर पाए।
लंबे लंबे वर्ड बोलेंगे तो नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, मगर व्हाट इज दिस प्रोग्राम? द प्रोग्राम इज अमेदा। किसके लिए जरूरी है? सबके लिए जरूरी है इस वक्त तो, है ना, सबके लिए जरूरी है। बट आप अपने अपनी प्रॉब्लम देखिए और उसके हिसाब से देखिए कि ये आपको, ये कोर थिंग है, ये आपको करना चाहिए। Take a decision. If you take a decision towards your life, you'll see you can go towards health and happiness. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा। बाकी the team will take you forward. Thank you so much, Anilji, for sharing the video with our participants. I would now like to invite Ashish Mehra sir to please share his journey of Amida. Ashish Mehra sir. Hello. Sir, if you could start your video, it would be great. Thank you so much, sir. Yeah, ma'am. Ma'am, I joined Kumbhak last month under guidance of Swamiji and our mentor Ganga ma'am. I was low on confidence. I had very health issues. But on the process of these classes, my confidence level has gained and my health is improving day-to-day basis. And above all, I've lost 6 kgs of weight and even 1 or few inches of my waist even. So overall, I am feeling very, very nice, very good and healthy. Because I used to feel depressed, low, having bad thoughts and all that, but all this has changed after joining Kumbha. Thank you so much, Ashish Mehra ji, for sharing your journey of Ameda. Now I would like to invite Swapna Prasad ma'am to please share her journey of Ameda. Swapna Prasad. Yes. Ma'am, can you start your video, please? Thank you so Hello. much, ma'am. Yes. I had joined Ameda some 2.5 months back. I had joined it because of my constipation and weight gain. But really, after doing this Kriyas, I had lost my weight also, and I am my capacity to do work also has increased, and my constipation issues are just coming below, but it's not fully. I have not fully recovered, but I can see some changes. So I really this class has helped me a lot. Thank you so much, ma'am, to take out time for our webinar and sharing with the participants your journey of Ameda. Now I would request Anilji to please share the program details for which the participants are waiting. Over to Anilji to share the program details. Thank you, Rachna ji. Are you able to hear me? Yes. Okay. आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ. Okay. So let's get to know the details of the program. Program के detail जान लेते हैं. Many people may be waiting for it. First of all, this is a guided program conducted online on the Zoom app by trained Kumbhak mentors. ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो Zoom ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस के थ्रू करवाया जाता है. जैसे अभी आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं अपने Zoom ऐप के ऊपर, ऐसे ही आपके क्लासेस होने वाले. ये तो हुई पहली बात. प्रोग्राम ओवरव्यू. दिस इज अ 6-week प्रोग्राम और 40 days or 42 days if you may. There'll be 18 live classes and 3 classes will be conducted every week. So 6 weeks into 3 classes makes 18 live classes. There's a Pran Shakti diagnosis for root cause determination. This is the magic of this therapy actually, that what is the reason that is causing weight gain and other issues in your body. It's a completely unique diagnosis and I'll talk about it
in detail also after some time. इसमें एक प्राण शक्ति डायग्नोसिस है जो आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, वेट की प्रॉब्लम्स हैं या बाकी हेल्थ इश्यूज हैं, उसकी जड़ पता लगाने के लिए अपने आप का एक यूनिक डायग्नोसिस है ये. एंड देयर बी वन कस्टमाइजेशन क्लास अपार्ट फ्रॉम द 18 क्लासेस. जब आपकी क्रियाओं को कस्टमाइज किया जाएगा प्राण शक्ति डायग्नोसिस के बेसिस पर, उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, कस्टमाइजेशन क्लास कहलाती है. बैच actually this is batch 10. This is the last slide, last batch slide. The batch 10 will start on 24th August at 7 p.m. which is a Thursday. 24 अगस्त को ये नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है. क्लास डेज क्या क्या रहेंगे? थर्सडे फर्स्ट क्लास रहेगी, सैटरडे सेकंड क्लास. After that, from next week onwards, Monday, Wednesday, Friday will be the classes. We'll share these details in the class dates in WhatsApp group and in the Zoom chat here also. What is the class experience like? As you must have understood by now, these are live sessions. ये live sessions रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो हमारे कुंभक मेंटर्स कंडक्ट करेंगे. Mentors watch all the participants. Since it's a online program, क्योंकि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो आपको अपना कैमरा स्विच ऑन करके रखना होता है क्लास के दौरान. You to keep your cameras on during the classes because the mentors they need to watch you while doing your kriyas. And then there'll be written instructions in English and Hindi. हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश मिलते हैं. Session recording और the class recordings are provided. आपको एक कोर्स डैशबोर्ड का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है जहां पर सभी पुरानी जो क्लासेस हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी. There'll be a lot of extra things during the course of your program. There'll be a lot of mental practices, unique diet perspective will be given. Mind you, this is not a diet plan. You'll get a video from Swamiji about how to use food in a way so that it supports your body and not harm it. ये क्योंकि इसमें डाइट तो कुछ होता नहीं और डाइट्स काम भी नहीं करती है, तो इसलिए एक खाने के बारे में थोड़ी आपको और समझ इसमें मिल सकती है. Then there'll be simple detox processes and a lot of knowledge will be shared during the course of the program. And before I share the program details, it's also very important to know who this program is not for. ये भी बहुत जानना जरूरी है कि ये किन के लिए नहीं है. रचना जी ने तो शेयर किया है किन लोगों के लिए है वेबिनार के स्टार्टिंग में, बट अभी हम बात करते हैं किन के लिए नहीं है. दिस इज नॉट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ मैजिक पिल एंड वांट रिजल्ट्स टुमारो ओनली. आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड स्पेशली दे वांट टू लूज वेट. दे आस्क क्वेश्चंस लाइक एक हफ्ते में कितना हो जाएगा, 15 दिन में कितना वेट लॉस हो जाएगा, एक महीने में कितना वेट लॉस हो जाएगा. सी, it's not you or us who can decide this, the body will decide it. रिस्क कम करेंगे, जैसा कि आपने अगर स्वामी जी का वीडियो ध्यान देकर सुना है, इफ यू वॉच्ड स्वामी जी एंड लिसन केयरफुली, ही टॉक्स अबाउट द रिस्क. तो जितनी जल्दी रिस्क कम होगा उस वो डिसाइड करेगा कि आपका वेट कितनी जल्दी लॉस होगा. एंड लाइक स्वामी जी सेड, वेट इज जस्ट वन एस्पेक्ट. इस प्रोग्राम का सिर्फ एक छोटा सा पक्ष है जो वेट लॉस है. बाकी जो चीजें हैं जो रिस्क क्रिएट कर रही हैं उनके ऊपर भी इसमें फोकस किया जाए. एंड दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क इन द बॉडी. ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो अपने शरीर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डेली आपको 60 to 70 मिनट्स के आसपास अपने क्रियाओं को करने में टाइम देना पड़ेगा. यू विल बी रिक्वायर्ड टू invest this time 60 to 70 minutes on yourself to do your daily kriyas. So if you do not have this kind of time, if you are time poor, then this program may not be for you. And it's not for those who are impatient. ये again weight loss में क्या होता है, you always want, this is connected to the first point, don't be in a hurry, right? तो ये पेशेंस रखना पड़ेगा because this is a long term way of losing weight and it's not just about weight. बॉडी में क्या रिस्क है जिसकी वजह से वेट इंक्रीज हो रहा है उसको एड्रेस किया जाएगा, यानी कि रूट को एड्रेस किया जाएगा. इसीलिए जो डाइट्स होती हैं वो काम इसलिए नहीं करती हैं बिकॉज दैट्स अ
That's not the correct way of looking at disease. ये एलोपैथिक का तरीका है या वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है कि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आ गई है एक्सरसाइज करके उनको बर्न कर दो, या फिर एक्स्ट्रा कैलोरीज जाने ही ना दो बॉडी में। दोनों ही तरीके गलत है, बिकॉज रूट को तो आप एड्रेस कर ही नहीं रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एंड इट्स नॉट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्री ट्रीटमेंट और जस्ट सम टिप्स। ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिकॉज आप सभी ने या तो फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट देखा होगा या इंस्टा पर, हम वहाँ एडवर्टाइज करते हैं फ्री इंट्रोडक्टरी वेबिनार, बट मेनी अ टाइम्स पीपल मिसअंडरस्टैंड दैट दिस थेरेपी इज फ्री। This therapy is a guided program, so we cannot offer it for free. And if you are look here in the webinar to pick up some tips, then this program may not be for you. Because see, tips के ऊपर आप कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं ले सकते हैं। आप देखेंगे कि स्वामी जी ने कोई टिप्स थोड़ी दी हैं अभी तक, और ना ही देने वाले हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस डू नॉट हैपन विद टिप्स। अगर टिप्स से वेट लॉस होना होता या फिर कोई और, तो हजारों सैकड़ों वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, इस यू कैन वॉच, और वहां पर इतने एक्सपर्ट्स हैं, कितनी अलग अलग टाइप की वहां पर आपको एडवाइस मिलेगी, सजेशन मिलेंगे। सो ये टिप्स जो ढूंढ रहे हैं वो उनके लिए भी नहीं है, बिकॉज ज्यादातर लोग, काफी लोग होते हैं जो बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड करते हैं कि यहाँ से ये टिप मिल जाए, वहां से वो टिप मिल जाए, बट थिंग्स डू नॉट वर्क दैट वे। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड इट्स अ स्पेशल प्राइसिंग फॉर पीपल हु आर हियर अटेंडिंग लाइव। Normal price is 9,500, the fee, but it's been reduced to 5,500 so that maximum people can take advantage of this. And what are the steps to enroll? The first step is to pay the program fee, and then you post the payment receipt in the WhatsApp group. पेमेंट करने के बाद आपने पेमेंट रिसिप्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है। हमारी टीम में नेहा है, वो आपकी पेमेंट को कंफर्म करेंगी और फिर आपको आपके पर्सनल चैट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर क्लास ज्वाइन लिंक भेजेंगे और बाकी और डिटेल्स और फर्दर इंस्ट्रक्शंस आपको भेजेंगे। एंड देन स्टेप 4 इज टू ज्वाइन द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप, जो मैंने बताया, जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, उसकी मैं बात करूंगा अभी थोड़ा डिटेल में। What all you get in the program? The first is the प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन। इसकी थोड़ा, जैसे मैंने पहले बताया था, कि थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। मोहन जी, प्लीज डो नॉट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन, दिस इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, प्लीज रिस्ट्रेन योरसेल्फ। लेट मी इरेज दिस। ओके, प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन, ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस। पहली बात तो यह है कि एक नॉन मेडिकल डायग्नोसिस होता है, और दूसरा दिस इज अ ऑनलाइन डायग्नोसिस, ये ऑनलाइन में ही डायग्नोसिस होता है। अब दोनों ही चीजें बहुत अजीब सी शायद आपको सुनाई देंगी कि ऑनलाइन में कैसे करेंगे और नॉन मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड we've been used to going to a diagnostic center, giving a sample of a urine, blood, getting scan, MRI, whatnot. So that is none of this diagnosis is not like that. तो इसमें होता क्या? You'll get a form in which you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा और आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने को बोला जाएगा अपनी सांस के ऊपर, ब्रेथ के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर, और वो रिकॉर्ड करना होगा फॉर्म में। सेकेंड थिंग दैट यूल बी रिक्वायर्ड टू डू इज टू राइट अबाउट योर प्रॉब्लम इन डिटेल। दूसरी चीज, आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में लिखना होगा, जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं। और थर्ड, आपको एक सेल्फी फोटो अपलोड करनी होगी जिसमें चेहरा एकदम साफ दिखता हो लेकिन आंखों पर चश्मा ना हो, और लेडीज के केस में मेकअप भी ना हो। द थर्ड थिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड टू डू इज टू अपलोड अ सेल्फी फोटोग्राफ शोल्डर एंड अबव इन विच द फेस is clearly visible, but there has to be no specs on the eyes, and in case of ladies, no makeup also. When these three things reach Swamiji, he is able to know the root cause, which is causing weight loss, weight gain, which is causing other issues, health issues in your body. And based on this, there is a customization, which I'll talk about later. Then there'll be 3 live classes per week, like I already said. Duration of each class will be 60 to 70 minutes. After the class, your doubts will be taken up. You can ask questions from your mentors in the live class only. Third,
point is class recording access for 6 months. Like I told you, all the classes are recorded and uploaded to your course dashboard. And this access will remain with you for 6 months, which is enough time to learn all the kriyas by heart. आपको सभी क्लास के रिकॉर्डिंग्स कोर्स डैशबोर्ड में मिलेंगी. आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा अपने कोर्स डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए, और वहां पर सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी आपको. Then separate videos of all the kriyas will also be given. How this is different from the class recording? Class recording is of the whole duration, 60, 70, 80, whatever duration that is. But separate videos of all the kriyas are small videos of each kriya. Some kriya may take 2 minutes to watch, some may take 5, 10 minutes. So these separate videos of kriyas are also given. आपको अलग अलग क्रियाओं के छोटे छोटे वीडियो भी मिलेंगे. जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने कोर्स डैशबोर्ड में, ये आपको वहां पर अवेलेबल हो जाए. Then written instructions are there in English and Hindi. ये भी आपको कोर्स डैशबोर्ड में मिलेगा. जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप वहां पर देखेंगे रिटन इंस्ट्रक्शंस है, लिखित निर्देश हैं, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं. काफी लोग जैसे ट्रैवल करते हैं, अपनी क्रियाओं को मिस नहीं करना चाहते, तो प्रिंट अपने बैग में या अपने पर्स में रखते हैं, और जब भी टाइम उनको मिलता है वो उससे रेफर करके अपनी क्रियाओं को कर सकते हैं. देन डेली सपोर्ट इन द क्लास ग्रुप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि मैंने बताया कि 3 दिन क्लासेस होंगी. बाकी 3 दिन जब आप अपने आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उस समय अगर कोई सवाल, कोई डाउट आपके मन में आता है, तो आपने इस क्लास ग्रुप में पूछना. ये सपोर्ट ग्रुप है. यहाँ पर हमारे मेंटर्स ऐड होते हैं इसी ग्रुप में, और वो आपकी डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं, क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको. दिस इज द डेली सपोर्ट दैट यू विल बी गेटिंग इन द क्लास ग्रुप, राइट, फॉर आस्किंग एनी डाउट्स, क्वेश्चंस, and whatever is there regarding your program or the course. Then customization of kriyas as per the Pran Shakti diagnosis. This is very important. The Pran Shakti diagnosis for root cause determination. This is the first point. स्वामी जी डायग्नोसिस से पता लगा पाते हैं कि जड़ क्या है प्रॉब्लम की. फिर आपकी क्रियाओं को कस्टमाइज करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं आपके डायग्नोसिस के आधार पर, और ये सबके लिए अलग अलग होगी. राइट, सबको आपको अलग अलग दी जाएंगी, और फिर आपने वो कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आप फिर जड़ के ऊपर काम कर रहे होंगे. जो प्रॉब्लम्स की जड़ है, जो आपकी इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज है, उसकी जड़ के ऊपर आप काम कर रहे होंगे. ये कस्टमाइजेशन होती है, जिसके लिए मैंने बताया था कि एक एक्स्ट्रा क्लास मिलती है. Then 30 days of extra support after the program is over. See, this is the only program which is offering support and a complete 30 days support after the program is over. Right? ये क्यों देते हैं? कई बार कुछ लोगों की क्लासेस मिस हो जाती हैं एक के बाद एक. मे बी कोई इलनेस है, खुद बीमार हो जाते हैं, या कोई फैमिली में कोई ऐसी इलनेस हो जाती है, या फिर ट्रेवल कर रहे हैं आप, या कोई भी और रीजन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है. तो 30 डेज ऑफ एक्टिव सपोर्ट. आपका जो क्लास व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, उसको हम जैसे 42 डेज या 6 वीक्स तब तक आपकी क्लास चलेंगी, प्लस 30 डेज. उसके बाद वो ग्रुप को हम डिलीट करते हैं. तो आप एक्टिवली जुड़े रह सकते हैं इवन आफ्टर योर 6 वीक्स आर ओवर. आगे बढ़ते हैं. पेमेंट मेथड्स विल शेयर इन द Zoom chat and in the WhatsApp group also. And this webinar pricing, this discounted fee is available till I think 23rd August, which is day after tomorrow. So you can take advantage of this. And now we have a support team who will be handling various parts of the program. We have Rachna Shrimal Bothra. She is the program director, and she is the webinar host also. We have Shalini Bhagwat. She takes care of all the batches, assigning mentors and everything. Ranjana, Vibha, they are the mentors for your program, for the Ameda Shleb Shuddhi Chikitsa program. Neha Upadhyay, she is the enrollment in charge, and she'll be the person who you will be talking to the most before you start your classes. She'll be the person who will be sending you payment links. She'll be confirming your payments, and she'll be sending you class join links as soon as she receives your payment and confirms your payment. Anil John, that's me. I'll be answering your questions in the WhatsApp group. Due to shortage of time, Swamiji may not be able to take up all the questions, but you don't have to worry if your question is not taken or answered by Swamiji here. Please post your question
if not answered here in the WhatsApp group. We'll make sure that each question is answered. So you need not worry. Himanshu Reddy, he takes care of the uploading videos, the written instructions. He'll be helping you if there's anything technical that you are facing problem with. So there's a proper team here which is in a place to help you complete your program successfully. And with this, I come to the end of my presentation. Thank you. Namaskar. And I hand over the webinar back to Rashmi. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Now I would be taking up the questions one by one as Swamiji has joined in. So let me just put him on spotlight. Namaste, Swamiji. Good Namaskar, evening. Swamiji. So I don't see very many questions. Okay, Neha can take up the questions which is related to the class or the course. Anybody from the participants who would like to ask their questions can please do so. Priyanka ma'am writes about sweating. Sweating what? Sweating more or sweating less? Sweating less Priyanka can ma'am, be a can you problem. please? Sweating more is not a problem. Sweating less can be a little problem, but see, whatever your body is allowing, that is okay. हेलो मैम, वो आप क्वेश्चन किया था तो उसका आंसर मैं बोल रही थी कि वो ही उस टाइम पे वो मैंने राइट डाउन करके लिख दिया था. स्वेटिंग नो क्वेश्चन एनी मोर सर. Okay. अच्छा अच्छा ठीक है. Okay. Anybody else from the participants who would like to ask their questions? हेलो. हाँ जी. हेलो. हाँ जी, मैं डायबिटीज के बारे में कुछ जानना चाह रहा हूँ. डायबिटीज के बारे में क्या कर सकते हैं? अब ये डायबिटीज के लिए हम अलग से एक प्रोग्राम करते हैं, पर देखिए डायबिटीज आपका शुगर लेवल कोई डायबिटीज है नहीं. लेवल अगर आप जांच करेंगे और कहेंगे कि मैं डायबिटिक हूं, तो ये बहुत ही गलत चीज है. शुगर लेवल कम करके पिछले 100 साल में कोई भी डायबिटिक ठीक नहीं हुआ. उसमें भी ये काम करते हैं कि जब ब्लड में शुगर होता है तो आपका शरीर जो है प्यास बढ़ा के फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करवा के उसको निकाल देता, क्योंकि वो अनवांटेड शुगर है. शरीर उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका लिवर फंक्शन अगर गड़बड़ है तो उसका मेटाबोलाइट्स यानी कि जो भोजन से वो ग्लूकोज निर्माण कर रहा है वो अगर अनयूजेबल है तो शरीर उसको बाहर फेंक देगा. तो हम क्या करते हैं, उसी शुगर को डिस्प्लेस कर देते हैं बाय टेकिंग सम काइंड ऑफ अ मेडिसिन. मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइकोलाइड, रोजीग्लिटाजोन, पायग्लिट, ऐसा कुछ दवाई है. ये सब क्या है, रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म है. ये जो रिसेप्टर खोल के, जैसे मेटफॉर्मिन आपके सेलुलर रिसेप्टर्स खोल देता है, जिससे कि ब्लड का ग्लूकोज जो है आपके ऑर्गन में चला जाता है. तो आपने ऐसा काम किया कि ब्लड में आपको ग्लूकोज नहीं देखना है ना. ये वेस्टर्न थोड़ा सा आइडिया है कि ब्लड का ग्लूकोज नहीं चाहिए अपने को, तो एक काम करो, किडनी में डाल दो, हार्ट में डाल दो, लिवर में डाल दो, तो ब्लड में तो दिखाई नहीं देगा. जब आप दवाई खाते हैं तो वो ग्लूकोज जाता कहाँ है, कहां से निकल रहा है, कान से, नाक से, कहां से निकल रहा है? वो तो आपके ऑर्गन में ही जा रहा है. ऐसे ना कचरा सामने दिख रहा है आपको, कोई मेहमान आने वाले हैं तो आपने सोफा के नीचे डाल दिया और फिर ये सोच लिया कि आपका घर साफ हो गया. तो इतनी मूर्खता तो ह्यूमैनिटी ने आज तक की नहीं जो कि आज हम कर रहे हैं. इसीलिए 100 साल में एक इंसान भी शुगर को लेवल को कम करके चाहे इधर उधर खिसका के ठीक नहीं हुआ. रादर किडनी के डिजीज, किडनी इश्यूज बढ़ गए, हार्ट के इश्यूज बढ़ गए, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया. कैंसर 12% के रेट से बढ़ गया. लिवर इश्यूज, लिवर सिरोसिस, और आजकल वो फैटी लिवर जो है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर एंड लिवर सिरोसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया. बच्चों को प्रॉब्लम आने लग गई, डायबिटीज हो गई. 3-4 साल के बच्चों को भी इंसुलिन लेना पड़ रहा है. तो ये ट्रीटमेंट पहली बात तो है ही नहीं. दूसरा, ये ट्रीटमेंट अगर नहीं है तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ योर बॉडी तो 100% है. ये तरीका नहीं है डायबिटीज ठीक करने का. इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपके शरीर की
गार्हपत्य अग्नि या फिर उसी का एक हिस्सा जठराग्नि कहते हैं, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, जठराग्नि, ये कम हो गई है, इसको अगर बढ़ा हाँ देंगे जी डायबिटीज ठीक हो हाँ जाएगी। जी नहीं तो शुगर लेवल कम करेंगे तो न्यूरोपैथी आएगा, रेटिनोपैथी आएगा, किडनी इश्यू आएगा, आगे चल के बहुत इश्यूज आने वाले हैं। वो कोई तरीका नहीं है डायबिटीज को ठीक करने का। जठराग्नि या गार्हपत्य अग्नि अगर आप बढ़ाएंगे तो डायबिटीज ठीक होगी। ये छोटे में मैंने बताया। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक बारी नंबर यहाँ पे शेयर करें, कोई ना कोई आपको कॉल करेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा, फिर मेरे पास में वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको सही प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट कर दूंगा। जी। हेलो ये जो आप कुंभक का, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो कुंभक का प्रोग्राम कराएंगे, इससे बेनिफिट होगा क्या? हाँ, ये कुंभक जो है ये एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म, किसी ने यहाँ पे पूछा भी है कि ये जो कुंभक है ये हठ योगा में जो कुंभक है उससे अलग है। हाँ जी, ये बिल्कुल अलग है। जैसे आपका शरीर है, आप शरीर हिलाते हैं तो योगा थोड़ी करते हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं ना, मगर योगा भी आपके शरीर को इस्तेमाल करता है। योगा का मकसद क्या है आप अगर समझेंगे ना, तो योगा का मकसद है आपको मुक्ति दिलाना, समाधि दिलाना, मोक्ष दिलवाना, एनलाइटनमेंट दिलवाना, निर्वाण, कैवल्य, ऐसा कुछ कुछ डेस्टिनेशन है। कुछ बोलते रहते हैं, वो भी तो- दुखी हैं, फिर वो झगड़ा करते हैं। तो अनम्यूट कर लीजिए, किसकी आवाज आ रही है? तो योगा आपके शरीर को इस्तेमाल करता है, आपकी सांसों को इस्तेमाल करता है, आपके माइंड को इस्तेमाल करता है। कुंभक जो है ना वो एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म है आपके ही शरीर का, आप उसे दोनों चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एफर्ट मेकिंग यानी आपके, देखिए कोई भी बीमारी एफर्ट की एबिलिटी कम हो गई ऐसा है, आप देख सकते हैं। अगर इसको ऐसा माने कि डायबिटीज क्या है जी, तो पैनक्रियास की एबिलिटी कम हो गई। थायराइड क्या, थायराइड ग्लैंड की एबिलिटी कम हो गई। न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल क्या है, इन सब ऑर्गन की एबिलिटी कम हो गई काम करने की। तो काम करने की क्षमता अगर कम हो गई तो वही डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है। और कुंभक से हम एफर्ट लगाते हैं किसी भी तरीके का, तो ये आपको एम्पावर आपके ऑर्गन्स को करेगा, एफर्ट मेकिंग एबिलिटी उसकी बढ़ा देगा। तो आपको जिसे आप बीमारी कह रहे हैं वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो कुंभक से हम ऑर्गन को एम्पावर कर रहे हैं, जेनेटिक्स को चेंज कर रहे हैं, है ना, अपना एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं, अपनी रीजनरेशन बढ़ा रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। ये कुंभक ही कर सकता है। तो कुंभक से हम योगा या मुक्ति नहीं दिलवा रहे या समाधि आपको नहीं दिलवा रहे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एम्पावर हो जाएं, ठीक से जिएं, समाधि या फिर मुक्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। तो हम कुंभक को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये जो हठ योगा में या फिर योग कलाचार में जो कुंभक है वो कुंभक की बात नहीं है। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट तरीके से हम कुंभक को इस्तेमाल, बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल। Hi, sir. Okay, Ritesh This is sir, Good. sir talks about. Yeah, sir. Sir, Sir, I just there wanted is to one. ask हाँ बोलिए, one thing. go on. Yeah. There is a known person from my family, and he's diagnosed with a cardiac. He's a cardiac patient basically, and he is also having the high BP. So, will this program will help him, sir? Okay, let me tell you a little about this. See, there are different kind of pressure that happen in your body. One is blood pressure, which nobody can prove that there is a pressure of blood because it is against the mechanics of physics. या फिर it is against Bernoulli's principle in physics. So there is no blood pressure as such, but every tissue creates a pressure. So that is why we see pulmonary hypertension is something else, like hypertension caused by weakness of lungs. So it happens at a certain place. Hypertension can happen at various places in your body. What generally we call blood pressure is basically osmotic pressure of your body. So if you see what symptom the person is getting, then there will be a chance that you can reverse the symptom and cure the disease. But with an idea of blood pressure, again I'll say in the last 100 years, we have not even cured one person. There is not even one proof. Rather, heart disease and blood pressure has become the number one cause of death in the world. So what is this pressure?
through a blood pressure which a person gets into, what is the symptom that the person gets? Whenever he or she makes an effort, जब भी जोर लगा, whenever the person climbs staircases, he gets into a situation of breathlessness. Right? Whenever the person makes an effort, the person gets into breathlessness. So, what is the problem when you say blood pressure and heart disease? What is the problem the person is getting into? The person's effort making ability has become so less, a little effort, and the person gets into breathlessness. Now, how you make an effort? You make an effort by holding your breath. You can't make any effort without holding your breath. You lift a weight, you'll have to hold your breath. You'll have to, you push, you'll have to hold your breath. You pull, you'll have to hold your breath. You move your body, you'll have to hold your breath in variable proportion behind. So what has become weak in a blood pressure and heart disease? What has become weak? The effort making ability has become weak. The kumbhak has become weak. We call that particular kumbhak as Dakshina Bala or Dakshinagni. Now there is a special formula for increasing it. If a person does kumbhak, the person will be able to increase the breath hold capacity, thereby the blood pressure or even the heart disease will not cause any damage to the person. We have examples of a single person getting into 3 heart attacks and surviving without any difficulty. So, is it safe for the people who are having stunts? we have hundreds of people, rather 1,000 people who have stents in their heart. And if you don't want next stent, then you'll have to do something to improve the heart. Otherwise, it will keep coming. And with every stent 5-year age, a person loses 5 years of his or her age. Also, sir, will it be safe for the people, those who have umbilical hernia? Umbilical hernia is being caused by a certain factor called as the Vyana Paksha, the Vyana factor in the body becoming weak, which is structural integrity, in fact. Now, this umbilical hernia is increasing. If you see the data, the statistics, it is increasing. The rate of causing umbilical hernia is increasing day by day. And that is because the structure maintaining ability of the body is becoming weak day by day. This Vyana Shakti is becoming weak day by day. Or you can measure it actually. You can measure it. I always say you can measure it and see if it is good in you or not. So if you can inhale for a certain length, say 5 seconds, if you can hold for 20 seconds and exhale without difficulty for 10 seconds, then your Vyana Shakti is good. There are certain other factors I won't be able to explain to that depth, but in a very simplistic manner. So most of the people will see their Vyana Shakti has become weak. So over a few generations, there are a lot of factors of the body and the strength of the body which has become weak. If you just look at your ancestors and if you have met your grandfather, grandmother, then you would see their physical ability was much, much more than the current generation. So this, by the physical ability becoming weak, we are losing many forces and factors of the body. One of them is structural integrity of the body. That is why cancer is increasing at the rate of 12% also. Cancer is also caused because of the loss of structural integrity of the body. So yes, even umbilical hernia will become fine. See, the physical part of your body needs time to get into the earlier state. But the problem which is caused by deviation can be reversed faster. So when you start doing kumbhak, what will happen? Your symptoms will go off faster, but the cosmetic change in the body will take more time. Yeah, sir. Thank you so much. And also, can you give me a simple example of homocysteine levels increasing? Why that is? See, let other people also ask question. Otherwise, what will happen? I'll go on explaining this, and this is not supposed to be a medical college session.
university session where I'm explaining everything. But yes, lot of factors. The immune system of the body is in alarmingly toes up condition. Very, very, what you can say is overactive condition at this point of time. Why? Because we are increasing risk factor of this body. Whenever there is risk, the body will increase the immune response. So the immune response is always elevated. It is called as autoimmune disorder. Lot of factors which is rising at this point of time, RA factor, homocysteine level, many other factors are increased because the body wants to protect itself. Now, why the body wants to protect itself? There is lot of risk in the body. Why there is lot of risk? If you put diesel in a petrol vehicle, there will be risk for the engine, or petrol in a diesel engine, there will be risk for the engine. Your engine will shut down. Our body is not designed for chemical medicine, but we are incessantly putting chemicals or bombarding the body with chemicals from the childhood, from a 2 kg baby to lifelong bombardment of the body. And at the last stage of the body, it gives up. But the indicators happen in the young age. It starts giving indication. Now, if you do not reduce the risk or increase the tolerance of the body, there is no solution. Lot of medicines have come up and will come up even more in the coming decade. But somewhere humanity is getting into this sense now that all the diseases are caused by medicine, not elevated by medicine. So medicine is a culprit which we are thinking is a good thing. So all the levels which are incessantly or unidirectionally increasing in the body, it's all an indicator that you are increasing the risk in the body. Now, the first thing that everybody has to do is increase your tolerance, because you will not be able to reduce the risk factors in the current socio-economic condition. So, if there will be a viral infection, your government will say, okay, take vaccination. The vaccination will prove to be sometimes even fatal, because that is again a chemical bombardment in the body. Immunization has a different role which we used to do 8,000 years back in India. It was a different kind of immunization. Now the immunization scenario has taken a completely different turn. So risk factor you will not be able to reduce. You will not be able to improve your environment in the next 200, 300 years if we start now. The food that we have deviated, genetically modified food, processed, hybrid, inorganic, that you cannot reduce suddenly. So what you can do is improve the tolerance of this body, so that with the deviated environment and conditions, your body is able to tolerate the torture that is happening with the body. So very urgently it is required that you improve the tolerance of the body. The second thing is you reduce the risk factors in the body. You improve the organ function, organ strength. That is important. Both of them are only achieved by Kumbhak. So if somebody is doing Kumbhak, he or she will be able to ensure that he or she doesn't get into a crash or some kind of a chronic disease. That a person will be able to ensure. That is why it is very, very urgently required. नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पूछना चाहते हैं? नमस्ते स्वामी जी, हाँ, लेडी कौन बोल रही है, बोलिए। हाँ स्वामी जी नमस्ते। मुझे क्रोनिक राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस, और ये थोड़ा सा हेरिडिटरी है। मतलब मेरे दादी को भी था, फादर को है, ताऊ जी को है, बुआ को है, मुझे भी है, एंड नाउ आई कैन सी सिम्टम्स इन माय 3-year-old सन ऑल्सो। तो आपने अभी जस्ट जेनेटिक भी हम लोग क्योर कर सकते हैं इससे थोड़ा सा, बट बच्चों के लिए स्पेशली, तो बच्चों के लिए कितना जल्दी हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई प्रोग्राम है क्या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम है, मगर बच्चा जब खुद से कुछ करने के लायक बन जाता है तभी वो कुंभक कर सकता है। दैट मीन्स 8 years एंड अबव।
8 years and above. 8 Okay. years एंड अबव उसके लिए अलग है। दूसरी बात, यू गो 3 generations बैक, 3 जनरेशन आप पीछे जाओ, हाँ. मोस्ट ऑफ यू विल सी कि उस समय प्रॉब्लम नहीं था, फिर सडनली आया एंड नाउ इट हैज बिकम जेनेटिक। लाइक फॉर एग्जांपल, थायराइड में गो 3 generations बैक, देयर इज नो थायराइड। गो 3 generations बैक, देयर इज नो डायबिटीज। गो 3 generations बैक, देयर इज नो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। गो 3 generations बैक, देयर इज नो कैंसर। 3 जनरेशन, कई केसेस में 3 का 4 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। So when the other people in the lineage were not in this situation, suddenly started somewhere and then carry forward हो गया। हाँ. तो अपने दिमाग में हमको ये रखना चाहिए कि we have created genetic disease, it was not there। पहली बात ये क्लियर कर लीजिए कि हमने जेनेटिक डिजीज बनाया है, ये पहले नहीं था। फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स there was no genetic disease as such. Why? Because your body only knows one thing, how to recover. It doesn't know any other thing. The recovery strength goes down by age, but it doesn't go in opposite direction. The body only knows how to recover and that is it. उसके अलावा कुछ जानता ही नहीं। Now, अगर आप शरीर को काम ही नहीं करने देंगे, टॉर्चर करेंगे, तो someday this body will shut down the shop. ये अपनी दुकान बंद करने की कोशिश करेगा। तो आपकी दवाइयां क्या काम करती हैं, जो दवाइयों का नाम समझिए या उसका फंक्शनल तरीके से समझिए वो क्या काम करती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। नाउ ऑल द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग और स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग 2 तरीके के होते हैं। खास करके जिनको एलर्जिक कंडीशन होती है उनका ऑप्शन तो कुछ है नहीं, लास्ट में स्टेरॉइड ही देंगे। तो स्टेरॉइड क्या काम करते हैं? दे आर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, इसी चीज को रोकते हैं। क्या मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है? रीजनरेटिव स्ट्रेंथ आपकी बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। तो अगर रीजनरेशन को ही आप खत्म कर देंगे तो बॉडी ठीक कैसे करेगा? तो है ना। अब देखिए, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और आप अगर नाम देखना चाहते हैं तो इसी तरीके के आपको ये दवाइयां ऐसे काम करती है। लीवर बाईपास करके आपके शरीर के 95% दवाइयां आपका शरीर निकाल देता है, जो भी खाते हैं। 5% ओवरलोड किया जाता है। तो दैट इज अ फर्स्ट टॉर्चर दैट वी आर गिविंग टू बॉडी, एस इनहिबिटर। तो ये काम कैसे किया हमने? जब शरीर को हम रिकवर नहीं करने देंगे या फिर इसके स्ट्रेंथ को डिविएट कर देंगे, तो यही आपका शरीर, देखो नॉर्मली भी जेनेटिक्स इवॉल्व करता है। थ्रू जनरेशन जेनेटिक्स को इवॉल्व करना चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ द होल लिविंग सिस्टम इज मेड। तभी जेनेटिक्स चेंज होता है फॉर गुड, फॉर एडेप्टेशन, फॉर टॉलरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट। लेकिन इस शरीर को आप काम ही नहीं करने दोगे, इसको क्रिमिनल बना दोगे, तो जेनेटिक्स इवॉल्व नहीं होगा, जेनेटिक्स डिविएट हो जाएगा। वो दोष को खत्म नहीं कर पाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग जेनेटिक डिजीज। तो कोई भी जेनेटिक्स चेंज करने के लिए एपिजेनेटिक ट्रिगर चाहिए आपके बॉडी को। इसके 2 पक्ष हैं। आपके शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं, वो ब्लड में घूम रहे हैं, उनको ट्रिगर चाहिए आपके ऑर्गन को रिवाइव करने के लिए। अंदर ट्रिगर आप कैसे देते हैं? दूसरा पक्ष है एफर्ट से कर्म। हम कर्म किसे कहते हैं? एफर्ट को कर्म कहते हैं। तो कर्म का इंपैक्ट आपके फिजिकल जेनेटिक्स पे इंपैक्ट होता है, फंक्शनल एक्टिविटी से आपके जेनेटिक पे उसी तरीके का इंपैक्ट होता है, फिर आपका जेनेटिक उसी हिसाब से ढलता है। तो एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म बॉडी का कुंभक है। इंटरनल ट्रिगर अगर जेनेटिक्स को देना चाहते हैं या स्टेम सेल्स को देना चाहते हैं, तो ये एपिजेनेटिक ट्रिगर ही कुंभक है। तो कुंभक से आप अपने जेनेटिक्स को बहुत तेजी से बदल सकते हैं, मगर तेजी का मतलब दर्द की दवाई खा के आधे के घंटे के अंदर दर्द का सिस्टम काट देना नहीं होता। नेचर में फास्ट का मतलब भी, अगर आपको आम खाने हैं तो 5 साल आपको चाहिए। Similarly, if you want to do fundamental change in your body, there is a particular period which is required, the time period which is required if you are making the right effort.
देखो, आप दवाई खा रहे हो, कुंभक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक तरफ अच्छा करने का काम कर रहे हो, दूसरी तरफ उसको खत्म कर रहे हो। तो ऐसे में भी क्या होगा कि स्लो हो जाएगा। देखो, होगा तो फायदा सबको, 100% गारंटी, मगर क्या प्रोसेस स्लो हो सकता। मगर एक बात बताइए कि अगर उस टनल में घुस रहे हैं जहां वो खुला हुआ है, रोशनी है आगे, तो वहां जाना चाहिए। लेकिन ऐसे टनल में घुस रहे हैं जहां कोई रोशनी ही नहीं है आगे, तो ऐसे टनल में तो नहीं जाना चाहिए ना। मेडिसिन से कोई भी एलर्जी का इलाज नहीं होता, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, वो भी शरीर को टॉर्चर करके। ऐसा मान लीजिए बच्चा रोता है तो आपने थप्पड़ मार दिया, चुप हो गया, तो इसका मतलब आपने इलाज कर दिया क्या उसका? और ऐसे इलाज को हम कहते हैं कि ठीक है, नाश्ते के बाद 4 थप्पड़, लंच के बाद में 5 थप्पड़ और डिनर के बाद में 10 थप्पड़ लगा दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बच्चा मर जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो। हमने अपने शरीर को ऑलमोस्ट मार दिया है इस तरीके से। तो ये ठीक नहीं कर पा रहा है अपने आप को, इसका ठीक करने की शक्ति इसको वापस देंगे तो ठीक हो जाएगा 100 पर। ये तो बहुत आसान है ठीक होना, ये तो बहुत आसान है ठीक होना। बट थिंग इज, यू put your phone numbers down, somebody will get in touch with you, discuss all the problems that somebody has, और उसके बाद में हम सही प्रोग्राम, क्योंकि वी रन डिफरेंट प्रोग्राम्स, हार्ट डिजीज का प्रोग्राम अलग है, डायबिटीज का अलग है, थायराइड का अलग है, किसी को अगर कंसेप्शन के लिए है, फर्टिलिटी के लिए अलग प्रोग्राम है, अस्थमा एलर्जीज के लिए अलग प्रोग्राम है, तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम है। तो हम सही प्रोग्राम की तरफ में आपको गाइड करेंगे। ओके स्वामी जी, एक्चुअली मैंने अष्टांग चिकित्सा वेबिनार अटेंड किया था, तो वहां पे मैंने क्वेरी पूछा था कि मुझे स्लिप डिस्क और एलर्जिक राइनाइटिस है, तो मेंटोर ने गाइड किया कि अमेद प्रोग्राम अटेंड करे करके, ऐसा। ये एक बार और डाल दीजिए यहाँ पे। ओके, हाँ, ठीक है जी। स्लिप डिस्क आप आपकी, एक मिनट, एक काम कीजिए, स्लिप डिस्क आपकी बहुत ज्यादा इशू है या फिर? स्लिप डिस्क, हाँ मतलब अभी स्लिप डिस्क तो 1 साल से है, और अभी थोड़ा सा मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था तो थोड़ा कंट्रोल में है अभी तो। आपका वेट कितना है? 67.5। और हाइट? हाइट 5 फीट 3 इंचेस। हाँ, तो ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं। ओके, हाँ तो ठीक है। तो वही मुझे पूछना था, आपने जो बोला कि इवॉल्व कर रहा था, कि जैसे कि दादी को जब ये तकलीफ शुरू हुआ तो उनका एज शायद 50-60 था, मेरे फादर को शायद अराउंड एज ऑफ 20-25 हुआ, मुझे एज ऑफ 15-16 में हुआ, और बेटे को अभी 3 इयर्स के एज में ही दिख रहा है। तो मतलब ये तो हम ही कर रहे हैं ना। हाँ, ये तो हम ही कर रहे हैं। ओके, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच। कोई और सवाल है, कोई और क्वेश्चन है? एक रितेश सर का क्वेश्चन है, माय वाइफ हैज बीन डायग्नोस्ड विद हाई यूरिक एसिड एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, कैन इट बी क्योर्ड विद कुंभक? देखिए, हर चीज को प्रॉब्लम नहीं बोलते, है ना। ये वेस्टर्न आइडिया, फिरंगी का आइडिया जो है कि लाइफ ही प्रॉब्लम है या फिर लाइफ ही गलत है, हम इसको ठीक करना है, इससे निकलना पड़ेगा। पूरा मेडिकल साइंस, वेस्टर्न मेडिकल साइंस जो ये एलोपैथिक साइंस है, वो इसी वेस्टर्न रिलीजन के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, ठीक है ना। इट इज मोर अ सुपरस्टिशन देन साइंस। साइंस का टैग तो इसको मार्केट करने के लिए है। अगर साइंस होता तो प्रॉब्लम कम हो रही होती या बढ़ रही होती? कम हो रही होती। ये तो बढ़ रही है प्रॉब्लम। तो ये सुपरस्टिशन है जो हम कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल डिजीज है। कोलेस्ट्रॉल पहली बात तो डिजीज है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल से ही आपका शरीर हार्मोन्स बनाता है, कॉर्टिसोल बनाता है। कॉर्टिसोल और हार्मोन्स अगर आपके शरीर को ज्यादा बनाने की जरूरत है या फिर वो बना नहीं पा रहा, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को ही बढ़ाएगा। देखिए, कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल एंटी स्ट्रेस या फिर एंटी रिस्क हार्मोन है आपके बॉडी का। रिस्क बढ़ गया जैसे मैंने बताया, तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाना पड़ेगा बॉडी को, क्योंकि रिस्क कम करने के लिए कॉर्टिसोल बनाना है। अब आप उसको वो भी नहीं करने देना चाहते। ये बेचारा फीवर क्रिएट करके इन्फेक्शन और कोरोना को मारता है, आप वो नहीं चाहते, फीवर कम कर देते हो पैरासिटामोल खाते। ये बेचारा उल्टी करता है, दस्त करता है, वो बंद कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हीरे मोती शरीर से निकल रहे हैं कि उसको रोक के रखना है। ये बेचारा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके
अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कराएगा, तो वो उसको बंद कर देंगे हम। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये तो सोचना पड़ेगा ना। वाई वी हैव मेड दिस बॉडी इनटू अ क्रिमिनल, इसको क्रिमिनल क्यों बना दिया, और इसी को साइंस बोलते हैं। क्या बॉडी को टॉर्चर करने का नाम है साइंस? तो ये कोलेस्ट्रॉल तो आपके शरीर का बढ़ा हुआ है, वो आपको बचाने के लिए बढ़ा हुआ है। फैटी लीवर एक्चुअली आपको बचाने का ही तरीका। 80% लोगों को फैटी लीवर है, किसी भी ग्रेड का कह लो, ग्रेड वेट तो आइडिया है, क्योंकि शरीर बचा रहा है अपने आप को। भाई आप ये समझिए ना, इतना टॉर्चर कर दिया आपने, ये बेचारा बचा रहा है अपने आप को, आप वो भी नहीं बचाने देंगे, है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आप वो नहीं बचाने देंगे। कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी क्रिएट नहीं करता। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता। देयर इज नो प्रूफ। ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होता ही नहीं है। अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होता है। नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 95% ब्लॉक आज है, क्या 1 महीने पहले नहीं था? 95% के बाद में ऐसा थोड़ी होता है एक घंटे में, ठीक है 5%, 6%, ऐसा थोड़ी होता। अगर कहीं पे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो वो तो 10 साल से हो रहे हैं। तो 1 महीना पहले भी तो 95 था, तब हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? पहली बात, ब्लॉकेजेस अच्छे होते हैं। द मोर ब्लॉकेज अ पर्सन हैज, द मोर टॉलरेंस द हार्ट हैज, द मोर लाइफ द पर्सन विल हैव। जितने ब्लॉकेजेस होंगे उतनी लंबी उम्र होगी। तो लंबी उम्र अगर कम करना है तो ब्लॉकेजेस हटाओ, कोलेस्ट्रॉल कम करो बॉडी का। कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे स्टैटिन खा के, तो डायबिटीज 25% नई डायबिटीज को स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल कम करने की वजह से हो रहे। अब बताइए, उनको तो होना ही था डायबिटीज। आपका आइडिया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ गड़बड़ है तो उसको कम करना है, तो उसे 25%, 100 में से 25 लोग, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग से होता है। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का गाढ़ा क्यों होना? ब्लड का गाढ़ा होना शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ब्लड गाढ़ा नहीं होगा तो आपको एक चोट में सारा ब्लड निकल जाएगा, मर जाएगा इंसान। लेकिन अंदर क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर आप केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो। बेचारा अंदर कर रहा है ब्लड को गाढ़ा। अब शरीर की क्या गलती है बताइए? फिर उसको इकोस्प्रिन खा के कम करते रहो। अब इकोस्प्रिन खाएंगे तो आपके शरीर में जान ही नहीं रहेगी, क्योंकि ब्लड का एक लेवल का गाढ़ापन की वजह से आपके बॉडी में स्ट्रेंथ होता है, तो ढीला पड़ा रहेगा शरीर। तो शरीर को गाजर मूली बनाना है क्या? वही बना रहे हैं हम। मुझे एक बात बताइए ना, घुटने खराब हो गए, क्या है इलाज? घुटने बदलवा लो। किडनी खराब हो गया, क्या है इलाज? उसके अलावा इलाज ही नहीं है, किडनी बदलवा लो। लिवर खराब हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट कर लो। हार्ट खराब हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो। अरे साहब, आप ठीक क्या करते हो ये तो बताओ। क्या हमारे अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं बचा? हम तो पढ़े लिखे हो गए, इस वजह से प्रॉब्लम में आ गए। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। 25% जिसने 25 साल तक जिसने पढ़ाई की है, वो 70% उसका इंटेलिजेंस गोल हो गया, खत्म हो गया, इरिवोकेबली। उसके बाद भी लिखा हुआ है वापस नहीं आएगा। और दुनिया पढ़े लिखे लोगों की ही बात मान रही है, इसलिए गड्ढे में जा रही है। हमारे पूर्वज समझदार थे। अपनी समझ का इस्तेमाल करें। आप लोग भारतीय हैं, अभी भी समझ बाकी है। अच्छा है कि बहुत ही ज्यादा नहीं पढ़ लिख लिए, ठीक है ना। ये कल्चर तो अभी शुरू हुआ है, नहीं तो पूरी बुद्धि खत्म हो जाती हमारी। तो प्लीज अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें कि हम कर क्या रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, जो मेडिसिन दिया है वो खाना है कि नहीं खाना है? डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया यूरिक एसिड के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन, वो हम स्टॉप देखो यूरिक एसिड, हाँ देखो यूरिक एसिड आपके शरीर में दो तरीके, जैसे मैंने बताया, रिस्क बढ़ेगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। ऐसे मान के चलिए कि आपके लाइफ का बैलेंस ना दो पक्ष के बीच में होता है।
एसिड फैक्टर एल्कलाइन फैक्टर के बीच में लाइफ होता है। एसिड जो है ना, कोई भी हीट आपके बॉडी में एसिड बढ़ाती है, रिस्क एसिड बढ़ाता है, क्योंकि रिस्क का मिटिगेशन भी एसिड से होगा, मगर उसके बाद बैलेंसिंग फैक्टर कूलिंग डाउन यानी एल्कलाइन बनाता है आपका शरीर। दिन में आपका शरीर एसिडिक बनता है, रात में एल्कलाइन बनता है। इंदु मित्र कहते हैं इसको हम, कि चांद और सूरज ये दो ही वंश थे हमारे देश में, चंद्रवंशी सूर्यवंशी, और दोनों को एक तरीके से उनके शरीर के हिसाब से बैलेंस करना पड़ता था अपने आप को। तो जब भी रिस्क बढ़ाएंगे, एसिड फैक्टर आपके शरीर का बढ़ता है और उसको ठीक करने का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि एसिड बढ़ाने का काम तो आप दिन रात कर रहे हो, आप सोच रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे पाश्चात्य जगत ने गॉड के नाम पे पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अच्छा करने के लिए पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर दिया। वही काम हम कर रहे हैं। वो देखो, वही माइंडसेट है आपका। एलोपैथिक माइंडसेट जो है पाश्चात्य जगत से आया, उनका वही माइंडसेट है, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है। तो आप दवाई दे रहे हो, एसिडिक बना रहे हो, फिर कहोगे यूरिक एसिड बढ़ गया। अरे ये कैसी बात हुई? आप भोजन कर रहे हैं प्रोसेस, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई, आपका शरीर उसको भोजन ही नहीं समझता। आपको अमेरिकन ब्रेकफास्ट चाहिए जिसमें ऑरेंज जूस हर सुबह चाहिए। अरे ऑरेंज जो है वो सर्दियों में पैदा होते हैं। जिस मौसम में जो फल सब्जियां पैदा होती हैं, उसी समय उस मौसम में ही आपको सूट करेगी, दूसरे में नहीं करेगी, मगर प्रिजर्व करके खा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसका टेस्ट मुझे पसंद है। पूरा डाइट सिस्टम ह्यूमन का बर्बाद कर दिया मिशेलिन शेफ ने। अगर अपने आप को बर्बाद करना है ना डाइट को, तो मिशेलिन शेफ को देखो। अगर अच्छा भोजन देखना है तो अपने पूर्वजों को देखो। ये आंखें हमको खोलना पड़ेगा। यूरिक एसिड बढ़ रही है, आप दवाई खाओ उसको कम करने के लिए, दवाई से और जो नुकसान होगा उसको कैसे कम करेंगे? आप तो आइडिया लगा रहे ना इतना लेवल होना चाहिए, वो लेवल बना के बाकी जो खराब करेंगे उसको, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो दवाई खानी चाहिए आपको, नहीं खानी चाहिए, ये मैं मुझसे ना पूछें, क्योंकि मैंने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया। और वो एक कानून के दायरे में, उन्होंने कानून भी खुद बनाए हुए कि उनके अगेंस्ट में कोई जाएगा तो उसके ऊपर केस कर देंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे। पूरा माफिया सिस्टम है। तो मैं आपको बोलूं कि नहीं खाना है, खाना है, मैंने तो प्रिस्क्राइब नहीं किया आपको। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी है। ना तो इसकी जिम्मेदारी आपका डॉक्टर लेगा, ना तो सरकार लेगी, ना तो WHO लेगी, ना तो अमेरिका लेगी, जिसको रोज आप पैसा देते हो आपके ऊपर ही चौधरीपना करने के लिए। अब जो दवाई खाते हो उसका कट अमेरिका को जाता है, ठीक तो कोई होता नहीं, क्योंकि प्रूफ ही नहीं है। 100 साल में कोई प्रूफ नहीं है कि ठीक हो गया। मगर इतना बड़ा मार्केटिंग मॉडल बनाया हुआ है, ये मॉडल की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि लोग अपने को बर्बाद करने के लिए आपको पैसा देते हैं। क्या कमाल की चीज है। अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए भी आपको पैसा दे रहे हैं। क्या करें फिर उसका? तो आप मेडिसिन लें चाहे नहीं लें, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको एम्पावर होना है उसके लिए, आपको समझना है उसके लिए, और क्या करना है, देन ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढना है। हमारे यहां वैद्य है, आयुर्वेद इकलौता ऐसा साइंस है जो एग्जैक्टली बताता है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। क्योंकि एलोपैथी को मालूम ही नहीं कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है, डायबिटीज क्यों हो रही है, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज क्यों हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, कैंसर क्यों हो रहा है, थायराइड क्यों हो रहा है, वो जानते ही नहीं है। आप पूछिए, एक टाइम आएगा जब वो कहेंगे नहीं मालूम हमें। जो जानते नहीं है वो तो दुनिया का इलाज कर रहे हैं, जो जानते हैं वो तो गड्ढे में डाल रखा है उनको। रिसर्च ही नहीं अलाउ करते। आयुर्वेद में रिसर्च ही कितना हो रहा है। तो आयुर्वेद का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कुंभक है, जो कि इमीडिएटली आपके वात पित्त कफ दोष को अरेस्ट करता। ये तो खो ही गया। थोड़ा बहुत योग कलाचार में इसका मेंशन है, बाकी तो खो ही गया ये। तो ये आप पहले समझिए, आपको मालूम ही है कि आपको ठीक कैसे करना है, क्योंकि आपका शरीर बोलता है मुझे ये खाने का मन कर रहा है, आप केवल उसको देते नहीं हो। आप क्या देखते हो? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कितने लोगों ने यहां पे प्रोटीन देखा है अपनी? कोई भी किसी ने भी प्रोटीन देखा? आपने प्रोटीन देखा है? किसी ने भी नहीं देखा।
कार्बोहाइड्रेट देखा है? नहीं नहीं, देखा ही नहीं कभी। अंदाजा लगाते हो आलू में ज्यादा, चावल, क्योंकि किसी ने बोल दिया आपको। विटामिन मिनरल्स देखे हैं? किसी ने भी नहीं देखे। लेकिन भोजन की बात इन्हीं टर्म्स में करते हैं। किसी ने भूत देखा है? आप भूत के बारे में बात करोगे तो आपको क्या बोलेंगे? अरे सुपरस्टिशन है ये तो, क्योंकि आपने देखा नहीं। और आप बात कर, आपने देखा होता तो अलग बात होती ना, आपने देखा ही नहीं। आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल देखा ही नहीं, मगर उसी के टर्म्स में बात करते हो, तो आपको क्या बोले हम? सुपरस्टिशियस बोलना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा नाम चाहिए, साइंटिफिक सुपरस्टिशन, ऐसा बोले चलेगा? तो ऐसे ही ग्रीको रोमन शब्द लगा के कोई ठीक तो हुआ नहीं। आपको नाम बोल देते हैं ऐसे ऐसे, तो आप ठीक तो होते नहीं। तो ऐसे केवल शब्द बोलने से कोई ठीक नहीं होता। ये बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है। पहले तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप प्रोटीन खाना बंद कर दो। प्रोटीन जितनी भी चीजों में है उसको खत्म कर दीजिए। दूसरी बात, कोई भी चीज हैवी और एसिडिक अगर होगा तो उसको आप लेना बंद कर दीजिए, यूरिक एसिड वैसे ही कम हो जाएगा। अब अपने शरीर को की स्ट्रेंथ बढ़ा दें और इसको कूल डाउन कर दें। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुंभक करना पड़ेगा, कूल डाउन करने के लिए रेस्ट करेंगे, हाइड्रेट करेंगे बॉडी को। और कुंभक में ही तरीके हैं कूल डाउन करने के भी। ये दोनों को अगर बैलेंस करेंगे, यूरिक एसिड वैसे ही चला जाएगा। बहुत नॉर्मल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझिए चीजों को और आंखें खोलिएगा। लॉजिक जो है ना, बहुत खतरनाक होता है। लॉजिक बहुत खतरनाक होता है। तो लॉजिक से अगर आपको कुछ समझा जाए तो लॉजिक से इसको तोड़ा भी जा सकता है। मैं इस बात को कहता हूं, दुनिया में किसी भी इंसान को मेरे सामने खड़ा कर दो, कोई भी साइंटिस्ट, उसका जो लॉजिक है उसको मैं तोड़ के दिखा सकता हूं। आज लॉजिक कुछ बोल दिया, कल तोड़ देते हैं। यही तो कहते हैं ना मॉडर्न साइंस ऐसे ही चलता। भाई पहले जले हुए पे कहते थे नहीं नहीं पानी नहीं डालना, फिर कहते हैं नहीं नहीं आप तो पानी डालो तो जो 5 साल में जो अपना स्टेटस को चेंज कर देता है, उस पर आप ज्यादा भरोसा करेंगे? या जो 10,000 साल की सभ्यता है, तो 10,000 साल का एक्सपेरिमेंट 10 साल के एक्सपेरिमेंट के लिए ना छोड़ें। स्वामी जी, हेलो, बोलिए। हाँ स्वामी जी, नमस्कार। ये नमस्कार। एक्चुअली मैंने थोड़े जून में खत्म हुआ था मस्कुलोस्केलेटल प्रोग्राम किया था मैंने। उससे मेरे को बहुत फायदा भी हुआ है और मैं बहुत खुश भी हूँ उससे। लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। और अच्छा, आप जो भी बोलने वाले हैं, पहले 6 महीने और जून में खत्म हुआ था, 2 जून के बाद में 6 महीने और उसके बाद में कोई दूसरा प्रोग्राम कीजिए। अच्छा, नहीं वो बिकॉज आपके प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और ये वाला तो बहुत ही अच्छा था श्लेषा का। तो यही मुझे पूछना था, फिर अगर ये करूंगी तो वो करूंगी तो कैसे वो होगा? अगर 6 महीने बाद नहीं, पहले 6 महीने करिए इसको और उसके बाद में फिर हम बताएंगे कि अगर आप और करना चाहते हैं तो कैसे एडजस्ट करेंगे। या डेफिनेटली मैं जरूर करना चाहूंगी। तो देखती हूँ 6 महीने बाद आपसे पहले उसको करिए। हाँ, हेलो, नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मेरी मिसिस को नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला है। नी पेन है, जो जॉइंट में घसारा होता है ना। हाँ। तो ये काम करें, डायबिटीज से और बीपी है। अच्छा, तो हमको कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा? देखिए, इसमें डायबिटीज या बीपी में कोई बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कंट्रोल में है। तो अष्टांग चिकित्सा का प्रोग्राम सबसे सही रहेगा। अष्टांग चिकित्सा वाला जो प्रोग्राम है वो सबसे सही रहेगा। और उसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें बहुत फायदा होगा। थोड़ा टाइम दे दीजिए शरीर को, 6 महीने का। उसके बाद देखेंगे अगर इम्प्रूवमेंट मतलब आ जाता है तो आपको ही इंस्पिरेशन मिलेगा कि नी रिप्लेसमेंट की तरफ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, बोलिए। मेरा मेनोपॉज़ल चल रहा है और मेरा वेट बढ़ गया है 10-15 किलो। मेरा 5 फीट 2 इंच रहता था और हरदम वेट 52 केजीज ही रहता था, 52-53। लेकिन अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं और मुझे भूख भी बहुत लगती है। तो मैंने कौन सा कोर्स करना चाहिए आपका? हाँ। तो ये मुझे वाला वेट कोर्स आप रिडक्शन कर सकते करना हैं। है।
हाँ, ये वाला कौन सा? कोर्स अमेदा / में शुद्धि चिकित्सा जो है ना, ये आप कर सकते हैं। जी, अच्छा ठीक है। तो उसके लिए डिटेल्स कहाँ ग्रुप में मिलेंगे क्या, व्हाट्सएप पे? ये आपको भेजा भी होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपना नंबर डाल दीजिए, कोई ना कोई आपको कॉल ठीक करके है। ना और आपको कितने हेल्प कर महीने देगा। का रहेगा गुरु स्वामी जी ये कोर्स? आपने वेबिनार नहीं देखा क्या? नहीं, मैं उसमें बीच तो में डिटेल, हाँ उसमें डिटेल है। मैं आई हूँ, सो सॉरी। हाँ हाँ, कोई थोड़ा बात नहीं, आप हम शेयर करेंगे, पूरा वेबिनार भी शेयर करेंगे, एक बार दोबारा से देख लीजिए इसको, और नंबर छोड़ेंगे ना तो कोई ना कोई आके आपको हेल्प करके सारा कुछ डिटेल भी बता देंगे, और जैसे भी है आपको एनरोलमेंट में भी हेल्प कर देंगे। थैंक यू। हाँ स्वामी जी, रितेश बोल रहा हूँ। मेरे को एक चीज हाँ। और पूछना था कि मेरे बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरा फैट कम नहीं हो रहा है और कॉर्टिसोल भी ज्यादा है। तो उसके लिए कुंभक ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है आपके में, हम्म, कॉर्टिसोल, फैट ज्यादा है। हाँ स्वामी जी, फैट भी बहुत ज्यादा है। कितना हाइट वेट बताइए? हाइट है मेरा 5 फीट 9 इंच और वेट है मेरा 106 kg। हाँ, तो आप ये वाला प्रोग्राम करो ना। एस्ट्रोजन लेवल देखो, एस्ट्रोजन बेसिकली टाइम कीपर है आपके बॉडी का। टाइम कीपर का मतलब क्या होता है? किस टाइम पे क्या चीज करना है, एस्ट्रोजन उसके वो बताता है। तो अगर आपके किसी ऑर्गन को ज्यादा फंक्शन किस टाइम पे करना है, कम फंक्शन किस टाइम पे करना है, तो एस्ट्रोजन उसमें मदद करता है। तो एस्ट्रोजन ज्यादा है का मतलब है कि वो एक्शन आपके बॉडी में, वो हार्मोन जो करवाना चाहता है वो करवा नहीं पा रहा। तो ये एक रीजन इसका जो हो सकता है वो हो सकता है ऑर्गन में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसको उतना जितना चाहिए उतना फंक्शन कर पा रहा है। ये एक रीजन हो सकता है, जो कि बड़ी आसानी से आपका माइटोकॉन्ड्रिया लेवल्स अगर बॉडी में कम है, डेंसिटी जिसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी कम है, तो ये कंडीशन जो है वो आ सकती है। ये डेंसिटी कम होने का ना, अगर आप देखेंगे तो बहुत लोगों में ये चीज हम देख पा रहे हैं। तो उसको हम क्या ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। वो लेवल्स नॉर्मल आ जाएंगे अगर माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी आपके बॉडी की इंक्रीज होगी। तो एक्चुअली हम एक रिसर्च भी कर रहे हैं कुंभक से, माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी किस तरीके से इंक्रीज होती है, क्योंकि हम तो एज अ रिजल्ट ये देख ही रहे हैं, रोज देख रहे हैं, जो भी कुंभक करता है उसके एनर्जी लेवल्स हाई हो जाता है। ये हम रोज देख रहे हैं, मगर एक तरीके से कहते हैं ना कि अगर आप एक रिसर्च करके उसको अगर नंबर्स में डाल सकें तो कम्युनिटी या फिर लोग बाग ज्यादा उसको अडॉप्ट करने के इच्छुक होते हैं। तो वो भी वी हैव टाइड अप विद सम साइंटिस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं, और वो इस एरिया में काम करना चाहते हैं, तो उस तरफ में हम काम कर रहे हैं। बट रियल में क्या प्रॉब्लम है ये समझ के आप अगर हम काम करें शरीर पे, तो बड़ी आसानी से हम इसको ठीक कर पाएंगे कुंभक को, और हम रिफाइन करेंगे आगे आने वाले टाइम में। मगर ये अमेदा वाला प्रोग्राम आप कर सकते हैं। अमेडा वाला सही रहेगा ना मेरे लिए, अष्टांग में ज्वाइन करें? हाँ, अमेडा ये वाला सही रहेगा। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। स्वामी जी, जैसे अभी डायबिटीज के बारे में बात चल रही थी, आपने बताया था कि दवाई लेते हैं तो हम बार बार यूनिनेशन करके उसको बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को निकाल सकते हैं, दवाई ना लें तो। हाँ। तो सर मैं पूछना ये चाहता, प्रॉब्लम ये है, मैंने आपका पहले भी वेबिनार सुना था तो मैंने ऐसा ही किया, बट उसमें ये होता है कि रात को ना नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, 5-6 बार यूरिनेट करने जाना पड़ता है। ये बात तो सही है कि उसमें डिस्टर्ब होती है, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को से निकलने में बॉडी थोड़ा तो टाइम लेगी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसीलिए बॉडी को एम्पावर करना जरूरी है। देखो एक और चीज करते हैं, बहुत आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ये क्या कर रहे हैं कि डायूरेटिक यूज करते हैं नेचुरल, जैसे गोक्षुरु आदि का इस्तेमाल किया, और भी ऐसे डायूरेटिक होते हैं नेचुरल। और मतलब एलोपैथी में भी वो डायूरेटिक देते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, डायबिटीज को ठीक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए डायूरेटिक देते हैं, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड देते हैं, एस इनहिबिटर देते हैं, लोसाकार, तोजा, रिपेस, कोएंस, या फिर इस तरीके का टेलमीसाटन, टेल्मा, इस तरीके का प्रोडक्ट देते हैं। वो बहुत खतरनाक है, वो किडनी पे काफी लोड लेता है और किडनी खराब हो रही है। मगर नेचुरल डायूरेटिक भी होते हैं, तो कुछ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, नेचुरल डायूरेटिक देके ब्लड शुगर कम दिखा रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद को भी एलोपैथी के रंग में रंगना चाहते हैं जी। तो आयुर्वेद भी शुगर लेवल कम करने के पीछे पड़ा हुआ है, जो कि पहले कभी ये सोचते नहीं थे इस तरीके से जी।
तो और डाइट को रेगुलेट कर देते हैं। 800 किलो कैलोरी का डाइट लेने के लिए कहेंगे पूरे दिन में। अब ऐसे में तो आप शरीर को मार देंगे, ठीक है, शरीर की रिकवरी स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी। ये कोई तरीका नहीं है। और ये तरीके में फिर क्या होगा, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो आप देख रहे हो कि वो पैरामीटर को हम शूट कर रहे हैं, शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ गया, और उसके बाद में वो शुगर लेवल बेसिकली वही है ब्लड में शुगर का की जांच, तो वो तो कंट्रोल में आ गया। और आपको अच्छा लग रहा है कुछ समय के लिए कि देखो मैंने तो कर लिया, कम कर दिया, और थोड़े ही महीनों में फिर क्या होगा, आपके ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। फिर हो सकता है कुछ लोगों की टॉलरेंस अच्छी है, 2 साल 3 साल झेल जाए, मगर फिर 5 साल बाद में उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये दूरदर्शिता ना बहुत खत्म हो गई आज के टाइम में, जो कि हमारे घर में हमारे दादा दादी में इतनी दूरदर्शिता थी। आज बिल्कुल ही पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल नकारा हो गए, एकदम खत्म ही हो गए, बुद्धि बिल्कुल खत्म हो चुकी। तो ये करने की बजाय अगर आप ऐसे में जाना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करता हूं, और हर एक को मैं यही बोल रहा हूं कि पहले अपने बॉडी का फंडामेंटल टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए। फिर आप अगर इसको कम करेंगे तो क्या होगा कि कम से कम आप अपने शरीर को बर्बाद नहीं कर देंगे। हाँ, उसके बाद अगर आपको जब समझ में आ गया कि इससे तो कुछ हुआ नहीं, नंबर ही कम हुए हैं, तो मेरी एनर्जी तो पहले भी ठीक थी, बीमारियां जैसे हमारे जो डायबिटीज करने वाले लोग हैं उनकी ग्लूकोमा ठीक हो जाती है, न्यूरोपैथी ठीक हो जाती है, इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। तो ऐसे उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है मगर क्या बीमारियां खत्म हो रही। तो शुगर लेवल तो प्रॉब्लम है ही नहीं। 100 क्या 200 का शुगर लेवल 10 बंदे खड़े कर लीजिए, क्या सभी को सेम प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। किसी को पता भी नहीं चल रहा होगा कि उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ, किसी को कुछ और प्रॉब्लम हो रही होगी, और सबके नाम उसका नाम क्या बोलेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, 200 का शुगर लेवल की वजह से। मगर ये तो बिल्कुल ही बेवकूफी हो गई ना। अगर सेम शुगर लेवल के 10 बंदे सेम प्रॉब्लम में नहीं आ रहे तो शुगर लेवल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बॉडी का टॉलरेंस है, झेल नहीं पा रहा, वो बढ़ाना पड़ेगा। 10 किलो वेट उठाओ, कैसे टॉलरेट करते हैं 10 किलो वेट को? सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो ज्यादा सांस रोकने की क्षमता होनी चाहिए, उसके ऊपर तो कोई काम ही नहीं कर रहा टॉलरेंस बढ़ाने के ऊपर। तो टॉलरेंस अगर बढ़ाएंगे तो कुछ समय लेगा आपका शरीर एडजस्ट करने में। कोई इंसान 3 महीने के अंदर हो जाता है बिल्कुल ठीक, कोई इंसान को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल 2 साल 3 साल तक भी लग सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे सुरंग में घुस रहे हैं जहां निकलने का रास्ता है तो वो ठीक है, कितना भी लंबा हो। जहां निकलने का ही रास्ता नहीं है उसमें सारे घुसे जा रहे हैं, कोई निकलने का रास्ता ही नहीं है। ठीक है जी? जी स्वामी जी। सो विल क्लोज द वेबिनार नाउ। अभी हम बंद करते हैं इसको। आप लोगों का जीवन बहुत हेल्दी हो और बहुत वैभवशाली हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। बाकी उसी क्लास में देख 3 लड़कियों ने क्योंकि बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेकर जा रहे हैं हम अपनी क्लास से, तो मैंने बोला यार लड़ रहे हैं तो कर लेती है, फिर तुझे आपने वगैरह बाकी एक कर रखते हैं। उन्हें तेरे पास वो आ गया कि इंटर हाउस का। ओके, तो वी आर कंप्लीटिंग, वी आर एंडिंग दिस वेबिनार। और अभी भी कुछ आपका सवाल है, कुछ आपका अनआंसर्ड क्वेरीज हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उनको डाल सकते हैं और हम आपको वहीं आंसर कर सकते हैं, और आप मुझसे या नेहा से फोन पर बात भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, स्टे हेल्दी, स्टे वेल।